Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everybody, to this webinar on insulin therapy in type 2 diabetes. So this webinar was the second webinar that I did. The first was for Ramadan and diabetes, which we repeated last time. And this webinar was done second after Ramadan and diabetes. Now we are repeating this webinar as well. In the initial days, there were less participants, so we are doing it again. So insulin therapy. So now in next 40-45 minutes, just forget everything because we are going to study everything about insulin. Now, what are insulins? How are insulins? What are the types of insulins? How to start? When to start? It is going to be an interesting journey, inshallah, and we'll all enjoy it. But just forget everything. Don't worry about anything else as we go through this this presentation. So the question is, why should insulin be initiated? What is the need of insulin? So diabetes mellitus is a progressive disease. Diabetes mellitus doesn't stay where it is. We all know that when diabetes starts, 50% of the beta cells are actually gone. And then forward, 4 to 8% beta cells are dying at a rate, of 4 to 8% per year. इसका मतलब है कि हर साल पैंक्रियास 4 to 8% पैंक्रियाटिक फंक्शन कम हो रहा है और जब डायबिटीज शुरू हुई है तो पहले ही आधे बीटा सेल्स तो जा चुके हैं. This means that in the initial days of diabetes we start with oral medications, but as time goes by the beta cell reserve goes down, and then whatever medications we give, there will be a time when insulin is needed. Now when insulin is needed, first up, second line treatment, third line treatment, we'll have a look at it. But remember one thing, now there is a myth coming up very quickly these days that insulin should be the first line treatment. No, it should not be the first line treatment. Remember, in diabetes, there are two pathophysiologies working: insulin resistance and insulin secretion defect. Most of the patients in diabetes, they are obese. And because they are obese, there is more insulin resistance. And as a result, earlier in the course of diabetes, you need to break down this insulin resistance via metformin. So you see, in the initial days of diabetes, many patients will need oral medicine. But yes, somebody who is very uncontrolled may need insulin right at the start. So we were talking that diabetes is a progressive disease. वक्त के साथ साथ दवाइयों की अफादियत कम हो जाती है, वक्त के साथ साथ इंसुलिन की जरूरत पड़ती है. Now if you see, this is the diagnosis of diabetes. Now when diabetes is diagnosed, I told you 50% of the beta cells are gone. And then as years go by, insulin secretion starts to go down. And you give oral medications initially, but then it doesn't work. Now, if you see this is from American Diabetes Association some 15 years ago. What happened was that in US, it took them 6 years to start insulin on average. And in these 6 years, okay, so this slide shows that more and more people will need insulin therapy as time goes by. So as the number of years go by, more and more people will need insulin. So this is the slide I was talking about. So this is US, right? 8.2 years and insulin wasn't started. So A1C was 8.6, 8.9, 9.6%. A1C खराब रहता गया, 8 साल निकल गए, insulin शुरू नहीं हुई. This was US some 1.5 decades ago. आज पाकिस्तान भी यही खड़ा है. HbA1c खराब है मरीज का. We as physicians are reluctant to start insulin. मरीज के पास हमेशा एक बहाना होगा कि मेरी बहन की शादी थी, मेरे घर में दावत थी, मैंगोस का जमाना था, एक चांस और दे दें, 3 महीने और दे दें, 3 महीने और दे दें. Remember, there is a clinical inertia. सालों के साल निकल जाते हैं, मरीज का HbA1c 8, 9, 10 रहता है और इंसुलिन शुरू नहीं होती. ऐसा नहीं होना चाहिए. हमें पेशेंट को मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं 3 months, 6 months, मैक्सिमम 1 year. 6 महीने में मैं समझता हूँ कि मरीज की डायबिटीज कंट्रोल हो जानी चाहिए. अगर नहीं हुई है तो हमें सीरियसली सोचना है कि फॉल्ट किधर है. मेरे अंदर एज फिजिशियन फॉल्ट है या मरीज बात नहीं मान रहा है. और मैं तो ये समझता हूँ कि अगर मरीज कोई बात नहीं मान रहा है तो ये भी मेरी फॉल्ट है, क्योंकि मैंने शायद सही तरह समझाया नहीं है. तो देखिए, ये यूएस में 8 साल निकल गए ऑन एवरेज जब इंसुलिन शुरू नहीं हुई, और 8.6, 8.9, 9.6 का HbA1c रहा. ये यूएस का हाल था डेढ़ डेकेड्स पहले. आज हमारा भी यही हाल है.
तो वी नीड टू बी प्रोएक्टिव इन स्टार्टिंग इंसुलिन। आज जो ये बात करने का मकसद है, जो आज हम इंसुलिन टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो मकसद ये है कि हम ये बात करें कि इंसुलिन कब कैसे स्टार्ट करना है। This is American Diabetes Association guidelines. This is a couple of years ago chart. You see first line metformin. आज भी दुनिया की most guidelines में metformin remains the first line therapy. Now if you see second line is open, sulfonylureas, thiazolidinediones, DPP4 inhibitors, SGLT2 inhibitors, GLP-1 analog and basal insulin. So ADA की guidelines कहती हैं कि basal insulin second line agent. अगर आप अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की गाइडलाइन देखें तो वो बताते हैं कि जी एट द स्टार्ट अगर HbA1c 9.5 से ज्यादा है, स्टार्ट इंसुलिन। प्रॉब्लम ये होती है कि एट द स्टार्ट ऑफ डायबिटीज आप पेशेंट को पहले काउंसिल करें कि आपको डायबिटीज है, फिर जब पेशेंट मान जाए अच्छा मुझे डायबिटीज है, फिर आप कहें अब हम आपको इंसुलिन देंगे। दैट बिकम्स अ चैलेंज एट टाइम्स, एंड यस वी ऑल एग्री दैट मोस्ट पेशेंट्स शुड बी स्टार्टेड ऑन oral medications, yes, metformin, and we all agree that maybe most patients do not require insulin at the outset. लेकिन देखिए सेकेंड लाइन पे तो इंसुलिन मौजूद है यूज करने के लिए। हमारे पास बहुत अच्छी मेडिकेशन है, मेटफॉर्मिन, DPP4 inhibitors, SGLT2 inhibitors, we have got sulfonylureas, we have got other medications as well. असल क्रक्स ये नहीं है कि इंसुलिन दें कि ना दें, असल क्रक्स ये है कि पेशेंट की डायबिटीज कंट्रोल होनी चाहिए, और डायबिटीज इस तरह कंट्रोल होनी चाहिए कि कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी को हम बचाएं, व्हिच इज द रियल प्रॉब्लम इन डायबिटीज। आई सी अ फ्यू हैंड्स गोइंग अप फॉर क्वेश्चंस। We'll take questions at the end of the session so that I just maintain my flow and you can just grasp me. जो भी questions है, we'll take it at the end of the day. So the whole point is कि ADA की guideline में insulin is a second line agent है। ACE की guidelines में if A1C more than 9.5, start insulin at the start. Whole point is whether you start insulin at the start or as a second line or as a third line agent. I don't care about this. What I care is कि पेशेंट की डायबिटीज कंट्रोल होनी चाहिए, चाहे आप उसको 4 ओरल मेडिकेशन पे रखें और कंट्रोल्ड है, एक्सेलेंट, चाहे आपने सिर्फ दवाइयों पे रखा है और कंट्रोल्ड है, एक्सेलेंट। असल चीज इस बहस नहीं है कि इंसुलिन कौन सी लाइन एजेंट है, ये तो आप फैसला करेंगे, मैं फैसला करूंगा। असल क्रक्स ये है कि डायबिटीज को कंट्रोल करना है, और कभी कभी इस बहस में कि इंसुलिन को किस स्टेज पे लाना है हम यही भूल जाते हैं कि हमारा मकसद क्या है। एक्चुअली हमारा मकसद है डायबिटीज को कंट्रोल करना। क्यों डायबिटीज को कंट्रोल करना? व्हाई? बिकॉज दीज आर ऑल द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज फ्रॉम हेड टू टो। मैं नहीं सारी कॉम्प्लिकेशंस पढ़ूंगा, यू ऑल आर एक्सपर्ट्स, यू नो इट। लुक, एज अ डॉक्टर, एज अ फिजिशियन, हमारी जो जिंदगी का मकसद है, वी ऑल वर्क, हर कोई काम करता है, हर कोई सुबह 9 बजे निकलता है, शाम 5 बजे आता है, आप और हम तो शायद लेट आते हैं। एवरीबडी अर्न्स। जो करप्ट लोग हैं वो भी करप्शन से कमा लेते हैं। असल गोल ये नहीं है कि हम जाके काम करें, हम वी एज डॉक्टर्स, आवर रोल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन प्रिवेंटिंग दीज कॉम्प्लिकेशंस। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी ये है कि मेरा मरीज व्हीलचेयर स्ट्रेचर पे नहीं जाए। My diabetes patients should not go on a wheelchair or a stretcher. They should not have a heart attack or a stroke. And this is the whole beauty of working as a doctor, that we want to prevent complications in our patients. Now you all know 1% HbA1c reduction reduces diabetes related deaths by 21%, myocardial infarction by 14%, microvascular complication by 37%, amputations by 43%. 1% कम करने से आपने 11 से 10 किया, ये सारे फायदे, आपने 9 से 8 किया, ये सारे फायदे। This is why we are working towards diabetes control, and this is why today this is an exclusive session only on insulin. Now, we all know that we have to start insulin at some point, whether early or late, it remains your decision as to what you want to do. Starting a patient on insulin. So we'll be talking about insulin as a treatment in type 2 diabetes. Now, 4 steps to insulin initiation. जब हम insulin शुरू करते हैं, there are 4 steps that we need to see. Step number 1, is insulin appropriate? देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ. For example, somebody, a 90 kg man, enters my clinic, newly diagnosed diabetes, वो आके बैठा, newly diagnosed diabetes, and he tells me, Dr. Ali, I read on Google, insulin is the best treatment, मुझे आप insulin पे शुरू कर. Will I start insulin? Never. Because I know this 90 kg man is probably having insulin resistance. I would start him on metformin or maybe on SGLT2 inhibitors if I want, but never on insulin, because insulin तो वजन बढ़ा देगा इसका। तो पहला सवाल ये है कि इंसुलिन appropriate है कि नहीं, अब देना भी है कि नहीं देना है।
एक 70 kg ओल्ड मैन है, मेटफॉर्मिन लेता है, HbA1c 8 आ गया, आप DPP4 इनहिबिटर भी ऐड कर सकते हैं, जरूरी तो नहीं है हम इंसुलिन ऐड करें। तो पहले ये देखना जरूरी है कि इंसुलिन एप्रोप्रिएट है भी या कुछ और दे सकते हैं, क्या कुछ और फायदा ज्यादा देगा। देखिए, नाउ देयर आर मेडिकेशंस लाइक SGLT2 इनहिबिटर्स एंड GLP-1 एनालॉग विद रिड्यूस्ड कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी। इंसुलिन तो वेट बढ़ाती है ना, हमें पता है, बट इट कंट्रोल्स डायबिटीज ऑब्वियसली, इसीलिए तो बात कर रहे हैं इंसुलिन पे। कहने का मतलब है कि सबको नहीं देना है, मैं जो बताना चाह रहा हूँ ये बता रहा हूँ कि सबको नहीं देना। वी नीड टू लर्न कि हमें किसे देना है और किसे नहीं देना है, कहाँ जरूरत है और कहाँ हमें कुछ और देना है। Number 2, what are the physical and psychological barriers? So when I tell my patient, हम इंसुलिन आपको स्टार्ट करेंगे, मरीज कहता है नहीं मैं तो नहीं लगाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं इंसुलिन नहीं लगाऊंगा। Now this is our responsibility to go and probe and ask why you don't want insulin. Why? क्या बात है? क्या बहू इस बात से परेशान है कि जी ससुराल मुझे घर से निकाल देगा? Let's address this. Let's educate people. क्या लोग इस बात से घबरा रहे हैं कि ये लास्ट स्टेज है जी, हम इसके बाद तो हम मर जाएंगे, जो आम कॉन्सेप्ट था पहले अब भी मौजूद है जाहिर है। As a good physician, we have to extract these barriers. मरीज से पूछना है कि आप क्यों नहीं लेना चाहते इंसुलिन, और एक एक करके उस बैरियर को एड्रेस करना है। एंड आई फर्मली बिलीव कि अगर कोई मरीज काउंसल नहीं हो पाता तो ये हमारी गलती है, कि हम इसमें वीक हैं। मरीज को तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी गलती है, लेकिन हमें पता हो कि हम काउंसलिंग में नाकाम हो गए, हमारी काउंसलिंग इतनी अच्छी हो कि मरीज इंसुलिन ले ले। देन द थर्ड स्टेप, व्हाट इज द इंडिविजुअल लाइफस्टाइल। एक मरीज है जो ऑफिस जाता है 9 to 5 बैंकर है, एक मरीज है जो बिल्डिंग में मेसन है, एक हाउसवाइफ है जिसके पास 5 बच्चे, उसके पास टाइम ही नहीं है कुछ भी, एक 70 ईयर ओल्ड शख्स है जो घर में अकेला रहता है, व्हील चेयर लेता है। कैसे? सब अलग है, हर कोई अलग है, हर एक का लाइफस्टाइल देखना बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द स्टेप नंबर 4 इज व्हाट सपोर्ट इज नीडेड। क्या सपोर्ट की जरूरत है? देखिए, जब मैं इंसुलिन शुरू करता हूँ तो जाहिर है मैं मरीज को कह देता हूँ अच्छा 1 हफ्ता है, आप मेरे पास कहीं भी वॉक इन कर जाएं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। मरीज को एक ट्रस्ट आ जाता है, हर एक को नहीं कहता, लेकिन जहां मैं देखता हूँ कि मरीज थोड़ा सा डर रहा है इंसुलिन शुरू करने से, मैं ये बेनिफिट देता हूँ कि 1 हफ्ते कोई भी प्रॉब्लम हो कहीं भी कराची में मेरे क्लिनिक पे लैंड अप कर जाए। हर एक को नहीं, कुछ लोगों को देखता हूँ किसको कितनी सपोर्ट की जरूरत है। राइट, घर में किसको सपोर्ट चाहिए? माँ बैठी है तो बेटे को जिम्मेदारी दे देते कि आप इसको मॉनिटर करें, आप ऑब्जर्व करें, आप SMBG करें। ये 4 स्टेप्स हैं इंसुलिन इनिशिएशन के। एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, बैरियर्स क्या हैं, लाइफस्टाइल क्या है, सपोर्ट कितनी चाहिए, all these things are very very important. So next is, what does starting insulin mean to patients? Fear of insulin. लोग डरते हैं, मुझे भी कोई कह डॉक्टर ये इसके आपको रोज 4 इंजेक्शन लगेंगे, एक लगता है तो मेरी जान निकल रही होती है, बटरफ्लाई स्पेशल मंगवाता हूँ कि भाई उससे जरा ब्लड लीजिएगा प्लीज, ठीक है। पेन, दर्द होता है मरीजों को, अरे दर्द है हो रहा है, स्टिग्मा, लोग क्या कहेंगे, इसको इंसुलिन लग रही है अभी से, needle itself, all these are fears, and a good physician is one who takes his patient along through these fears. ये मरीजों के fear address करने। सिर्फ एक अच्छा डॉक्टर वो नहीं है जो एक अच्छा प्रेस्क्रिप्शन पे एक आला क्वालिटी की इंसुलिन लिख दे। नो, काउंसलिंग इज इंपॉर्टेंट। आवर पेशेंट शुड बी इन आवर हैंड्स। ये ना हो कि पड़ोस वाला उसको कहे ये तो इंसुलिन खराब लिखी है और वो बंद कर दें, वो बंद कर देता है, इसका मतलब हमारे मरीज के साथ हमारी रेपो अच्छी नहीं है। We need to remember, look, this is a big event in the life of a type 2 diabetic. ये बड़ा इवेंट होता है, आसानी से नहीं गुजरेगा। This requires support. Now you see the grass here is not too good. The grass here is lush green. लेकिन ये जो सफर है ये बड़ा important है, and a good physician adequately takes his patient from this side of the grass to this lush green side. And this is very important. This is extremely important. And it always has to be a partnership. ये नहीं हो सकता मरीज क्लिनिक में आया, मैंने कहा भाई ये इंसुलिन लिख के दे रहा हूँ, you need to take this insulin, वरना मेरे पास वापस आने की जरूरत। This is arrogance, ठीक है। Sometimes people can get arrogant. A good physician should be empathetic. He should know कि जी मरीज अगर नहीं ले रहा है इंसुलिन तो क्या वजह है, उसको एक्सप्लोर करें। And then in the end it has to be a decision which should be mutual between the patient and the healthcare provider. दोनों एक पेज पे अग्रीड हो, 2 टाइम इंसुलिन लेना है तो दोनों अग्रीड हो, 1 टाइम इंसुलिन लेना है दोनों अग्रीड हो। ये ना हो कि आपने 2 टाइम लिख दिया और मरीज दिल में सोच के जा रहा है कि मैं 1 ही टाइम लगाऊंगा। This is our failure then. And then it has to be a team approach. Patient, the provider, the doctor and the educator. हम में से सबके पास शायद एजुकेटर्स नहीं हो क्लिनिक में, पाकिस्तान में जाहिर है हर जेन्युइन प्रैक्टिशनर के पास एजुकेटर नहीं होता है। But then we need to learn things. डाइट बतानी है,
इंसुलिन कैसे लगाना है ये बताना है, हाइपो हाइपर बताना है, एंड वी नीड टू लर्न हाउ टू बी क्विक इन दिस, बिकॉज मुझे पता है आप सब बिजी होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ पेशेंट्स आए हैं, सो बट वी नीड टू लर्न द आर्ट टू टेल दीज थिंग्स क्विकली, बट वी हैव टू टेल दीज थिंग्स। चाहे हम अपने क्लिनिक में ब्रोशर रख दें, ब्रोशर्स दे दें ताकि वो घर जाके पढ़ लें, and then it is a continuous thing. At every visit you can refine the knowledge of your patients. So coming up to different types of insulin, how many types of insulin are there? So when trying to recreate the normal pattern of insulin secretion, different patients have different needs. इंसुलिन दिन में एक बार भी लगती है, दो बार भी लगती है, तीन बार भी, चार बार भी। अब तक जो हमने बात करी वो ये करी कि when diabetes is uncontrolled, please don't stop, don't refrain from using insulin. Use it as a second line or a third line or a fourth line agent. And maybe if diabetes is too bad, you can start it at the outset. फिर हमने बात की कि डायबिटीज कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इंसुलिन आपने फर्स्ट लाइन दी के सेकंड के थर्ड के फोर्थ, ये भी इंपॉर्टेंट है कि वेट पे चेक रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कार्डियोवास्कुलर मोर्बिडिटी मोर्टेलिटी को कम करना, लेकिन मरीज का वक्त जाया नहीं करना। ये नहीं हो कि 6 महीने 9 महीने 12 महीने वही पेशेंट का A1C अनकंट्रोल्ड है, 4 साल 5 साल पेशेंट का A1C अनकंट्रोल्ड है। दिस शुड नॉट हैपन। 6 महीने के अंदर डायबिटीज शुड बी कंट्रोल्ड, मैक्सिमम 1 ईयर। नहीं हो रहा है तो वी नीड टू इवैल्यूएट व्हाट्स गोइंग ऑन। फिर हमने बैरियर्स ऑफ इंसुलिन थेरेपी पे बात की, कैसे उस बैरियर्स को एड्रेस करना है। सारी जिम्मेदारी फिजिशियंस की है, वी ऑल नीड टू एग्री विद दिस, राइट? एंड देन नाउ वी आर कमिंग अप ऑन इंसुलिन रेजिमेंस। कितनी टाइप्स है इंसुलिन की? इंसुलिन दिन में एक बार भी लगती है, दो बार भी, तीन बार भी, चार बार भी। अब मैं इस पर बात करने लगा हूं, नेक्स्ट 30 मिनट्स हम इस पर बात कर रहे होंगे रफली, राइट? इंसुलिन ट्रीटमेंट अटेम्प्ट्स टू माइमिक द पैटर्न ऑफ नॉर्मल इंसुलिन सिक्रेशन। अच्छा, अब ये देखें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर मैं आपसे कहूं कि मैं फास्टिंग में सुबह उठा संडे वाले दिन और सुबह सुबह मैंने कुछ भी नहीं खाया है, तो क्या मेरी बॉडी में इंसुलिन बन रही होगी? बन रही होगी, यस बन रही होगी, ठीक है। मुझे आवाज नहीं आ रही, मैं ऐसे यस कह रहा हूँ कि शायद आप में से कुछ कह रहे होंगे हाँ। देखिए, हर वक्त बॉडी में थोड़ी थोड़ी पैंक्रियास से इंसुलिन बनती रहती है। देयर इज ऑलवेज सम इंसुलिन दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम द पैंक्रियास, दिस इज द इंसुलिन। देखें, रात के 2 3 4 5 6 बजे बॉडी में एक इंसुलिन मौजूद है, दिस इज नोन एज बेसल इंसुलिन। बेसल इंसुलिन, बेसल इंसुलिन हर वक्त बन रही है पैंक्रियास से 24 आवर्स अ डे। तो अगर मैं यूं पूछूं आपसे कि अगर, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर एक इंसुलिन होती है जब हम खाना खाते हैं। जैसे ही हम खाना खाते हैं, देयर इज अ सर्ज ऑफ इंसुलिन। सो व्हेनेवर वी ईट फूड, देयर इज अ सर्ज ऑफ इंसुलिन। सो 3 मील्स अ डे, 3 सर्जेस ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन वही है, एक हर वक्त बन रही है, एक बोलस रिलीज हो रहे हैं। अच्छा, अगर किसी का पैंक्रियास नहीं हो, somebody doesn't have a pancreas, right? And we want to mimic this from outside, तो हमें 2 किस्म की इंसुलिन चाहिए। एक इंसुलिन हमें ऐसी चाहिए, ये जो स्लाइड है, ये पूरी आगे प्रेजेंटेशन की ये स्लाइड और एक स्लाइड आगे आएगी, मैं आपको बता दूंगा, ये क्रक्स है। अगर ये समझ में नहीं आया तो कुछ भी समझ में नहीं आया। देखिए, अगर हमें इस पैंक्रियाटिक फंक्शन को रेप्लिकेट करना है तो वी नीड 2 इंसुलिन्स। वन इंसुलिन शुड बी बेसल इंसुलिन। बेसल इंसुलिन, बेसल इंसुलिन पैंक्रियास कितने घंटे बनाता है दिन में? 24 घंटे। तो हमें एक ऐसी इंसुलिन चाहिए, बेसल इंसुलिन, जिसकी लाइफ कितनी हो, हाफ लाइफ कितनी हो? 24 घंटे। इसका मतलब कि एक बेसल इंसुलिन चाहिए जिसकी हाफ लाइफ हो 24 आवर्स। अच्छा, फिर 3 बार हम खाना खाते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 इंसुलिन आती हैं बोलस फॉर्म में। अच्छा, अगर ये इंसुलिन हमें चाहिए बोलस वाली, दिन में कितनी बार देनी पड़ेगी? जितनी बार खाना खाएंगे, 3 बार खाना खाते हैं तो 3 बार, 2 बार खाना खाते हैं तो 2 बार। अच्छा, इस इंसुलिन की हाफ लाइफ कितनी होनी चाहिए? 3 बार अगर कोई लेता है तो जाहिर है दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 8 8 8 8 से ज्यादा हाफ लाइफ ना हो, तो बोलस इंसुलिन हाफ लाइफ 3-4 घंटे भी हो सकती है, हाफ लाइफ 8 घंटे भी हो सकती है, लेकिन बोलस इंसुलिन 3 बार होगी। तो मैं अगर यूं कहूं कि किसी का पैंक्रियाज नहीं है, हम बाहर से इंसुलिन दे रहे हैं, तो हमें एक बेसल इंसुलिन चाहिए जिसकी हाफ लाइफ 24 आवर्स हो, 24 घंटे बेसल इंसुलिन की हाफ लाइफ। और हमें एक बोलस किस्म की इंसुलिन चाहिए, बोलस इंसुलिन, जो हम दिन में 3 बार दें, जिसकी हाफ लाइफ 8 घंटे से ज्यादा ना हो। इसका मतलब है कि हमें एक बेसल इंसुलिन लगानी है और 3 बोलस इंसुलिन लगानी है, तो दिन में हमें 4 इंसुलिन लगानी पड़ेगी, बोलस 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 और फिर एक बेसल इंसुलिन। लेट्स स्टडी दिस मोर, दिस इज इवन इंपॉर्टेंट स्लाइड। ये पूरी प्रेजेंटेशन में बार बार स्लाइड आएगी कहीं ना कहीं, क्योंकि यही इसी पे सारी बात होगी। अब देखिए, 2 किस्म की इंसुलिन थी ना, एक बोलस जो दिन में 3 बार देते हैं, एक बोलस एक बेसल जो दिन में 1 बार देते हैं। बोलस 3 बार देना है, बेसल 1 बार देना है। बेसल बोलस इंसुलिन फिजियोलॉजी। अच्छा, टाइप्स क्या है भाई, कौन सी इंसुलिन बोलस है, कौन सी बेसल है?
दिस इज बोलस इंसुलिन। बोलस में पहली टाइप है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। रैपिड एक्टिंग नाम है लिस्प्रो एस्पार्ट ड्यूलाइसिन। लिस्प्रो एस्पार्ट एंड ड्यूलाइसिन, ये रैपिड एक्टिंग है। हाफ लाइफ कितनी है? 4 आवर्स। बोलस इंसुलिन है ना, तो दिन में कितनी बार देंगे? 3 बार देंगे। फिर आती है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन। रेगुलर इंसुलिन, आर इंसुलिन जो होती है, रेगुलर इंसुलिन, ये दिन में कितनी बार देंगे? रेगुलर इंसुलिन ये भी दिन में 3 बार देंगे। कोई खाना 2 बार खाता है तो 2 बार देंगे जाहिर है, लेकिन आमतौर पे कोई सवाल पूछे कि बोलस कितनी बार देंगे तो 3 बार कहेंगे हम। तो रैपिड एक्टिंग 3 बार देनी है। लिस्प्रो एस्पार्ट ड्यूलाइसिन, हाफ लाइफ 4 आवर्स। शॉर्ट एक्टिंग रेगुलर इंसुलिन बोलस इंसुलिन है, दिन में कितनी बार देना है? 3 बार देना है। हाफ लाइफ कितनी है? 6 to 8 आवर्स। फर्क क्या है? हाफ लाइफ 4 आवर्स, शॉर्ट एक्टिंग हाफ लाइफ 6 to 8 आवर्स। ये दोनों बोलस इंसुलिन है। अब आ जाइए बेसल पे। बेसल इंसुलिन इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, जो एन इंसुलिन होती है, एनपीएच इंसुलिन, ये भी बेसल इंसुलिन है। अच्छा, इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है? 12 घंटे। बेसल इंसुलिन तो 24 घंटे होनी चाहिए, तो ये तो 12 घंटे। तो 12 घंटे है अगर एन की हाफ लाइफ, एनपीएच की, तो इसको बेसल बनाना हो तो दिन में कितनी बार देना पड़ेगा? 2 बार देना पड़ेगा। तो एनपीएच इंसुलिन कैन बी यूज्ड एज अ बेसल इंसुलिन। इट इज अ बेसल इंसुलिन। वी यूज इट ट्वाइस डेली टू मेक इट अ बेसल इंसुलिन। ये ट्रू बेसल नहीं है, इसकी भी पीक आती है जाहिर है, बट दिस इज यूज्ड एज अ बेसल इंसुलिन। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, डेटिमेर इंसुलिन, ग्लार्जिन इंसुलिन। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, 24 घंटे हाफ लाइफ है। डेटिमेर अराउंड 18 आवर्स, ग्लार्जिन अराउंड 22 to 24 आवर्स। ये बेसल इंसुलिन है। तो आप देखिए, दोबारा देख लीजिए कि बोलस में है रैपिड एक्टिंग 4 आवर्स हाफ लाइफ, लिस्प्रो एस्पार्ट ड्यूलाइसिन, दिन में 3 बार देना है। शॉर्ट एक्टिंग रेगुलर इंसुलिन, दोबारा दिन में 3 बार देना है, बोलस इंसुलिन है ये। बेसल में या तो आप इंटरमीडिएट एक्टिंग यूज करें, एनपीएच इंसुलिन, जो दिन में 2 बार दें, या फिर लॉन्ग एक्टिंग डेटिमेर या ग्लार्जिन यूज करें, जो दिन में 1 बार देना है। दिस इज बेसल एंड बोलस इंसुलिन। अब आपको 2 किस्म की बोलस इंसुलिन आ गई, 2 किस्म की बेसल इंसुलिन आ गई। इस प्रेजेंटेशन के बाद you'll also get a वर्कशीट, ठीक है, और वर्कशीट की मैं फिर आंसर्स आपको भेजूंगा बाद में, तो आप बिल्कुल अलर्ट रहें। नेक्स्ट 20 मिनट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? बेसल बोलस इंसुलिन। अच्छा, अब इन बेसल बोलस में कुछ ह्यूमन इंसुलिन होती हैं, कुछ एनालॉग होती हैं। तो देखिए, ये 2 बेसल इंसुलिन, बोलस इंसुलिन थी, रैपिड एक्टिंग एंड शॉर्ट एक्टिंग। इसमें से शॉर्ट एक्टिंग ह्यूमन इंसुलिन है। अच्छा, और बेसल में से जो इंटरमीडिएट है ये ह्यूमन इंसुलिन है, और जो बोलस में रैपिड एक्टिंग है ये एनालॉग इंसुलिन है, और ये जो लॉन्ग एक्टिंग है ये एनालॉग है। ये एनालॉग इंसुलिन है। रैपिड एक्टिंग एनालॉग इंसुलिन है, लॉन्ग एक्टिंग एनालॉग है। शॉर्ट एक्टिंग ह्यूमन है, इंटरमीडिएट ह्यूमन है। यानी बोलस के अंदर एक देखें रैपिड एक्टिंग एनालॉग है, फिर ये शॉर्ट एक्टिंग ह्यूमन है, फिर बेसल में भी इंटरमीडिएट ह्यूमन है, लॉन्ग एक्टिंग एनालॉग है। यानी दोनों में एक ह्यूमन है, एक एनालॉग है। फर्क क्या है ह्यूमन और एनालॉग इंसुलिन? ठीक है, इन द सेटिंग ऑफ पाकिस्तान where people are not very affording, I mean, good less than half or less than half of the population lives below the poverty line. 20% of the people are diabetic, right? Maybe 10% use insulin, I don't know. People cannot afford to buy analog insulins. Analog insulins expensive है, 2.5 से 3 गुना महंगी हैं। दूसरा फर्क ये है कि जो शॉर्ट एक्टिंग जो बोलस इंसुलिन होती है ना, इसमें अगर आप एनालॉग यूज करेंगे रैपिड एक्टिंग, तो हाइपो का चांस कम है। शॉर्ट एक्टिंग में हाइपो का चांस थोड़ा सा ज्यादा है। तीसरा फर्क यह है कि रैपिड एक्टिंग जब खाने से, अच्छा, बोलस इंसुलिन खाने से पहले लगाते हैं, तो जब रैपिड एक्टिंग होगी तो वो खाने से फौरन पहले लगेगी, और शॉर्ट एक्टिंग खाने से 20 मिनट से आधा घंटा पहले लगेगी। तो 3 फर्क मैंने आपको बताए ह्यूमन इंसुलिन और एनालॉग के। एनालॉग इंसुलिन आर एक्सपेंसिव, ह्यूमन इंसुलिन आर चीप। पाकिस्तान में ज्यादा ह्यूमन इंसुलिन यूज करना चाहिए। नंबर 2, एनालॉग इंसुलिन कैन बी यूज्ड इमीडिएटली बिफोर मील्स। बोलस की बात हो रही है, बोलस इंसुलिन की, और ह्यूमन इंसुलिन खाने से आधा घंटा पहले लगाना है। तीसरा फर्क, एनालॉग इंसुलिन के साथ हाइपो का चांस कम है, ह्यूमन इंसुलिन के साथ हाइपो का चांस ज्यादा है। ह्यूमन इंसुलिन के साथ फिर आपको स्नैकिंग्स करनी पड़ती है, 3 मील्स और 3 स्नैक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। So now we have studied the most important slide of this presentation, right? Basal bolus insulin therapy. 3 बोलस इंजेक्शन थे, 1 बेसल था। बोलस इंसुलिन की बात करें तो 2 किस्म की बोलस इंसुलिन है, रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग। बेसल इंसुलिन 2 है, इंटरमीडिएट जिसको दिन में 2 बार देना है, और लॉन्ग एक्टिंग जिसको दिन में 1 बार देना है। नाउ लेट्स टॉक फर्दर। So this means that if we are giving basal bolus insulin, there has to be 3 bolus, 1 basal. अच्छा, मरीज को हम कहेंगे जी आपकी डायबिटीज खराब है, we are starting you on insulin,
और डॉक्टर असगर ने हमें बताया था कि बेसल बोलस इंसुलिन इज द बेस्ट मेथड. इट इज द बेस्ट मेथड. सबसे ज्यादा फिजियोलॉजिकल मेथड तो यही है ना, बेसल बोलस. तो मरीज 4 टाइम इंसुलिन, मोस्ट पीपल विल रिजेक्ट इट, राइट. तो जाहिर है मरीज को हम कहेंगे अब आपको 4 टाइम इंसुलिन लगाना होगा, बट दिस इज आइडियल. मरीज 4 बार, ज्यादातर मरीज 4 बार नहीं लगा सकते. This brings the concept of, तो 4 टाइम इंजेक्शन मुश्किल हो जाएगा. This brings the concept of pre-mixed insulin, mixture insulins, pre-mixed insulins. आप पढ़ते होंगे 70-30, 75-25, 50-50 कॉम्बिनेशन. ये कॉम्बिनेशन है किसकी? ये बेसल और बोलस को मिला के एक इंजेक्शन बनाया जाता है. दिस इज मिक्सचर, प्री-मिक्स्ड इंसुलिन. अच्छा, प्री-मिक्स्ड इंसुलिन में क्या होता है कि अगर आप शॉर्ट एक्टिंग, अच्छा शॉर्ट एक्टिंग ह्यूमन इंसुलिन थी, एनालॉग इंसुलिन थी. शॉर्ट एक्टिंग ह्यूमन इंसुलिन है. अगर आप शॉर्ट एक्टिंग रेगुलर इंसुलिन को कंबाइन कर दें इंटरमीडिएट एक्टिंग एनपीएच के साथ, जो बेसल इंसुलिन है, तो ये बन जाएगी प्रीमिक्स्ड ह्यूमन इंसुलिन. ठीक है. सो यू मिक्स द शॉर्ट एक्टिंग रेगुलर इंसुलिन विद द इंटरमीडिएट एक्टिंग बेसल इंसुलिन एनपीएच, इसको मिलाएंगे तो प्रीमिक्स्ड ह्यूमन इंसुलिन बन जाएगी. अच्छा, अगर इसी एनपीएच को आप रैपिड एक्टिंग के साथ मिलाएं, रैपिड एक्टिंग क्या है? एनालॉग इंसुलिन है. तो इसी एनपीएच को अगर आप रैपिड एक्टिंग के साथ मिलाएंगे, दिस बिकम्स प्रीमिक्स्ड एनालॉग इंसुलिन. कॉस्ट विल गो अप बाय 3 टाइम्स. हाइपोस कैन कम डाउन. इंजेक्शन फौरन लग सकता है खाने से पहले, लेकिन महंगी हो जाएगी कॉस्ट. तो आपने देखा, रेगुलर इंसुलिन को आपने एनपीएच के साथ मिक्स किया, ट्रेडिशनल प्रीमिक्स 70-30 इंसुलिन बन गई. एनालॉग्स को मिक्स किया एनपीएच के साथ, प्रीमिक्स्ड एनालॉग बन गया. ये मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा. सो नाउ वी आर मिक्सिंग. अब हम, आप समझ जाएं कि हम मिक्स कर रहे हैं इंसुलिन्स को. सो पहले हम ह्यूमन इंसुलिन्स की बात करेंगे. ठीक है. ह्यूमन इंसुलिन्स में एक हमने बोलस इंसुलिन ले ली. अब आप स्क्रीन पे नजर रखिएगा. एक बोलस इंसुलिन हमने ले ली, शॉर्ट एक्टिंग रेगुलर इंसुलिन. शॉर्ट एक्टिंग रेगुलर इंसुलिन ये बोलस है, और इंटरमीडिएट एनपीएच बेसल इंसुलिन है. जब हम इसको मिक्स करेंगे तो प्रीमिक्स्ड ह्यूमन इंसुलिन बन जाएगी. अब शॉर्ट एक्टिंग क्या होती है, मैं नाम बता रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए. मैंने 2 इंपॉर्टेंट कंपनीज के नाम इसमें लिख दिए, ह्यूमिलिन आर और एक्ट रैपिड. ये शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है. इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन ह्यूमिलिन एन और इंसुलिटार्ड. एन और आर ये चीज वही है. ह्यूमिलिन आर और एक्ट रैपिड एक ही है, कंपनी अलग है. ह्यूमिलिन एन और इंसुलिटार्ड एक ही है, कंपनी अलग है. इसी को मिक्स करें, अगर R और N को मिक्स करेंगे, इट बिकम्स ह्यूमिलिन 70-30. एक्ट रैपिड और इंसुलिटार्ड को मिक्स करेंगे, इट बिकम्स मिक्सटार्ड 30. तो आपने देखा, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन ह्यूमिलिन R और एक्ट रैपिड गेट्स मिक्स्ड अप विद इंटरमीडिएट एक्टिंग ह्यूमिलिन N और इंसुलिटार्ड, यानी बोलस को बेसल से मिलाया तो बन गया ह्यूमिलिन 70-30 और मिक्सटार्ड 30. Many people get confused in the hospitals के फर्क क्या है ह्यूमिलिन 70-30 and मिक्सटार्ड 30. They are the same insulins, सिर्फ ब्रांड अलग है, इंसुलिन्स वही हैं. So these are human premixed insulin, short acting plus intermediate acting. जो इंसुलिन बन गई उसे हम कहते हैं premixed human insulin. Let's go on and study analog mixtures. Analog premixed, analog कैसे बनती है? Analog में क्या है, देखिए NPH तो वही है, बेसल इंसुलिन वही है NPH. इसको मिक्स करेंगे रैपिड एक्टिंग के साथ. बोलस लेंगे लेकिन रैपिड एक्टिंग वाला. रैपिड एक्टिंग लिस्प्रो लेंगे यूमलॉग के नाम से, या एस्पार्ट नोवोरैपिड के नाम से, या ग्लूलाइसिन एपिड्रा के नाम से. इन इंसुलिन्स को जैसे ही हम मिलाएंगे एनपीएच इंसुलिन के साथ, तो प्रीमिक्स्ड एनालॉग इंसुलिन बन जाएगी. अच्छा, ये बन गई. जब आपने ये लिस्प्रो यूमलॉग को मिलाया एनपीएच के साथ, तो बन गई यूमलॉग मिक्स 25 या मिक्स 50. ये होता क्या है 25-50? तो पहले 70-30 का बता दूं, पीछे वाले चले जाते हैं स्लाइड पे. 70-30 का मतलब है 70% बेसल, 30% आर. यहां पे मिक्सचर अलग है, 25 है. मिक्स 25 का मतलब होता है 75% बेसल एन इंसुलिन, 25% एनालॉग इंसुलिन. और फिर या तो आप अगर एस्पार्ट को नोवो रैपिड, जो बोलस इंसुलिन है रैपिड वाली, उसको मिलाएंगे एन इंसुलिन के साथ, तो बन जाएगी नोवोमिक्स 30 या नोवोमिक्स 30 या नोवोमिक्स 50. ये 30 का मतलब है 70% बेसल एंड 30% एस्पार्ट. 50-50 है, मतलब एनपीएच और एस्पार्ट दोनों 50-50. तो आपने देखा कि यहाँ पे शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन को मिक्स किया एनपीएच के साथ, ह्यूमिलिन 70-30 मिक्सड 30. प्रीमिक्स्ड ह्यूमन इंसुलिन कॉस्ट में कम है, राइट. अगेन, अगर आपने एनालॉग इंसुलिन को रैपिड एक्टिंग को मिलाया एनपीएच के साथ,
आपके एनालॉग मिक्सचर्स बन गए। अब लोग सवाल करते हैं यूमोलॉग मिक्स 25 और नोवो मिक्स 30 में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, थोड़ा सा मिक्सचर में फर्क है और ब्रांड में फर्क है। यूमोलॉग मिक्स 50 और नोवो मिक्स 50 में क्या फर्क है? दोनों 50-50 के एनालॉग मिक्सचर है, दोनों का ब्रांड अलग है। तो हमने अब जो बात कर ली, मैंने बता दिया बोलस इंसुलिन दो टाइप्स, बेसल इंसुलिन दो टाइप्स। बेसल और बोलस को मिक्स करके प्रीमिक्स्ड बनती है। बोलस में दो थी, ह्यूमन और एनालॉग। ह्यूमन वाली को एनपीएच के साथ मिलाओगे तो ह्यूमन मिक्सचर बन गया। एनालॉग वाली बोलस को इंटरमीडिएट के साथ मिलाएंगे बेसल के साथ तो एनालॉग मिक्सचर बन जाएंगे। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब आपको मिक्सचर बनाना आ गए, यू नो व्हाट आर मिक्सचर्स, यू ऑलरेडी नो इट, हम तो ऐसे ही सारे रिवाइज कर रहे हैं। मील टाइम ग्लूकोज, अब हम कुछ और बातें करेंगे कि किसको मिक्सचर देना है, किसको कौन सा मिक्सचर देना है, किसको बेसल बोलस इंसुलिन देनी है। विल टॉक अबाउट दिस। Number one, mealtime glucose is a significant contributor. देखें, diabetes is not only about fasting, it's not only about postprandial. अच्छा ये बताएं कि जब मैं सुबह उठूंगा 7 बजे, 6 बजे, 8 बजे, मैंने खाना नहीं खाया हुआ है, मेरे अंदर उस वक्त कौन सी इंसुलिन है, बेसल या बोलस? कौन सी इंसुलिन है? जब मैं सुबह सुबह उठूंगा तो मेरे अंदर कौन सी इंसुलिन मौजूद है? बेसल। बोलस तो है ही नहीं, मैंने तो खाना ही नहीं खाया, बेसल। इसका मतलब फास्टिंग ब्लड शुगर को कौन सी इंसुलिन कंट्रोल करती है? बेसल इंसुलिन। और जब हम खाना खाते हैं तो बोलस इंसुलिन रिलीज होती है। तो इसका मतलब जो पोस्ट प्रेंडियल रैंडम ब्लड शुगर होती है, पोस्ट ब्रेकफास्ट, पोस्ट लंच, पोस्ट डिनर, ये वाली शुगर कौन कौन कंट्रोल करता है? कौन सी इंसुलिन? बोलस इंसुलिन। इसका मतलब है कि बेसल इंसुलिन कंट्रोल करती है फास्टिंग ब्लड शुगर, बोलस इंसुलिन कंट्रोल करती है रैंडम ब्लड शुगर। और जब आप प्रीमिक्स बनाते हैं तो दोनों कंट्रोल हो जाते हैं। इस पर बात करेंगे अभी। जब डायबिटीज शुरू होती है तो देयर इज मोर रैंडम ब्लड ग्लूकोज दैट इज बैड। फास्टिंग का इतना रोल नहीं होता। जैसे जैसे डायबिटीज खराब होती है, A1C 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से ज्यादा, फास्टिंग का कंपोनेंट बढ़ता चला जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? And again, this pyramid is, I mean, we need to remember this triangle, right? This triangle is very important. कि डायबिटीज कंट्रोल में सिर्फ पोस्टप्रांडियल की जरूरत नहीं है, सिर्फ फास्टिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। HbA1c alone is never reliable. ये तीनों मिलके it becomes the whole game. पेशेंट को सिर्फ फास्टिंग कंट्रोल नहीं करना, सिर्फ रैंडम नहीं करना, सिर्फ HbA1c नहीं करना, सब कुछ कंट्रोल करेंगे तो बात बनेगी। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ लेट्स, अब मैंने शुरू में बताया था कि इंसुलिन 4 बार दिन में देना है, या 3 बार, या 2 बार, या 1 बार। फिर हमने बात की अच्छा बेसल बोलस इंसुलिन फिजियोलॉजी पे काम करें तो दिन में 4 इंजेक्शन देने हैं, 3 बोलस और 1 बेसल। अच्छा वो तो मरीज कहेगा जी 4 बार मैं नहीं लगा सकता, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर असगर, तो मैं प्री मिक्सचर है, प्रीमिक्स्ड इंसुलिन है जो दिन में 2 बार भी लगती है, 3 बार भी लग सकती है। अब आ जाते हैं वंस डेली बेसल इंसुलिन। बेसल इंसुलिन, वंस डेली बेसल इंसुलिन। बेसल इंसुलिन मुझे बताएं कि किस शुगर को कंट्रोल करती है, फास्टिंग को या रैंडम को? फास्टिंग को। इसका मतलब है कि वंस डेली इंसुलिन, बेसल इंसुलिन हम उसे देंगे जिसका फास्टिंग ब्लड शुगर हमें कंट्रोल करना, राइट? अब इसमें 2 बेसल इंसुलिन थी, 2, दोबारा देख लीजिए चार्ट। बेसल इंसुलिन एक थी एनपीएच इंसुलिन, एनपीएच इंसुलिन, इसकी हाफ लाइफ थी 12 घंटे, तो दिन में कितनी बार देना है? 2 बार। सेकेंड इंसुलिन है बेसल इंसुलिन लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में कौन सी है? डेटिमेर एंड ग्लार्जीन है। ये दिन में कितनी बार देनी है? 1 बार। तो इसका मतलब है कि अगर फास्टिंग कंट्रोल करने के लिए अगर आपको किसी को इंसुलिन देनी है तो या तो आप एनपीएच देंगे दिन में 2 बार, अगर फास्टिंग कंट्रोल करनी है तो रात को एनपीएच देंगे, इवनिंग वाली फास्टिंग कंट्रोल करनी है तो सुबह एनपीएच देंगे। बहरहाल अगर सारी फास्टिंग खराब है तो 2 बार देंगे एनपीएच, या अगर लॉन्ग एक्टिंग देंगे तो आप 1 बार देंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। तो वंस डेली बेसल इंसुलिन में अगर आप एनपीएच दे रहे हैं तो आपको दिन में 2 बार देना है, अगर आप ग्लार्जीन दे रहे हैं तो आपको दिन में 1 बार देना है। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, रिजेक्ट कर दो कॉल, रिजेक्ट कर दो, सो कॉल है तभी रिजेक्ट कर देना, ठीक? So sorry for the disturbance, right? So once daily basal insulin, NPH इंसुलिन दिन में 2 बार देनी है, ग्लार्जीन या डेटिमेर दिन में 1 बार देनी है। याद रखें कि बेसल इंसुलिन हम दे रहे हैं फास्टिंग ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए। बेनिफिट्स क्या है और लिमिटेशंस क्या है? देखिए बेसल इंसुलिन की खास बात क्या है, दिन में 1 बार दे सकते हैं, 1 इंजेक्शन पर डे। तो मरीज को क्या कहते हैं, आपको सिर्फ 1 इंजेक्शन लगेगा, डोंट वरी, वो भी रात में लगेगा, आप खाना ना खा ले बेटा आपको लगा देगा। मरीज कहता है चलो दैट्स इजी, पेन इंसुलिन है, 1 बार लगेगा। 1 इंजेक्शन पर डे, इट्स अ गुड इंसुलिन टू स्टार्ट। जो लोग इंसुलिन के लिए रिलक्टेंट होते हैं ना, यूजफुल फॉर पेशेंट्स रिलक्टेंट टू स्टार्ट इंसुलिन। जो इंसुलिन शुरू नहीं करना चाहते हैं उनके लिए वंस डेली बेसल बहुत अच्छी इंसुलिन है। इवन वंस डेली प्रीमिक्स भी आप शुरू कर सकते हैं रात में, वो भी अच्छी इंसुलिन है।
if you want to start 1 injection per day. Particularly useful when patients blood glucose is high overnight and in the morning. मैंने बताया कि फास्टिंग खराब हो तो आपके लिए ये बेस्ट इंसुलिन है. अच्छा, आसान बात क्या है कि रात को लगती है तो मरीज अकेला भी रहता है तो नेबर लगा देता है रात में, बेटा बेटी आके रात को लगा देते हैं, आसान है. लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशन सबसे बड़ी ये है कि ये तो फास्टिंग कंट्रोल करेगी. अगर पेशेंट की रैंडम ब्लड शुगर्स खराब है, दिस वंस डेली बेसल इंसुलिन विल नॉट कंट्रोल पोस्टप्रांडियल ब्लड शुगर्स. तो फास्टिंग तो कंट्रोल हो जाएगी लेकिन पोस्टप्रांडियल कंट्रोल नहीं होगी. This is a limitation. Again, it requires a fairly strict, predictable diet. आपको दिन में एक ही बार डोज लगाना है. जो ग्लार्जीन है उसमें 1 आवर का वेरिएशन है, नई इंसुलिन है उसमें 3 आवर का वेरिएशन भी है. The presentation is mainly for the general practitioners across Pakistan and abroad and for junior doctors basically. So मेरा focus जो है वो core concepts of insulin पे है. And the insulins that we have been traditionally using. I'm not talking about the most latest insulins because you're not catering to the 5% specialists who might be sitting on board, right? So मैं बात traditional insulins की कर रहा हूँ जो 95-99% पाकिस्तान में यूज करते हैं. अब हम आ जाते हैं, हमने once daily basal insulin की तो बात कर ली. अब हम बात करेंगे premixed insulin की. Now premixed insulin आमतौर पे दिन में 2 बार देते हैं, लेकिन आप दिन में 1 बार भी दे सकते हैं और दिन में 3 बार भी दे सकते हैं. 3 बार खास तौर पे आप 50-50 वाला मिक्सचर देते हैं, लेकिन इवन 70-30 और 75-25 वाले मिक्सचर भी आप दिन में 3 बार दे सकते हैं. लेकिन 70-30 और 70-25 वाले मिक्सचर्स आप दिन में 2 बार देते हैं, 50-50 वाले आमतौर पे 3 बार देते हैं. अच्छा, होगा क्या प्रीमिक्स में? क्या होता है, बेसल और बोलस दोनों मिले हुए हैं. तो अच्छा, प्रीमिक्स इंसुलिन फास्टिंग कंट्रोल करेगी कि रैंडम? जाहिर है दोनों करेगी, फास्टिंग भी और रैंडम भी, क्योंकि उसमें बेसल इंसुलिन भी है और बोलस भी है. दिस इज अ मिक्स्ड इंसुलिन. मिक्स्ड इंसुलिन आप पहली मिक्स्ड इंसुलिन देते हैं ब्रेकफास्ट पे, दूसरी देते हैं डिनर पे, आमतौर पे, राइट? आमतौर पे दिन में 2 बार देते हैं. अब इसमें जो ये जब आपने ब्रेकफास्ट में दी, नाउ बी वेरी केयरफुल, जस्ट कीप योर आईज ऑन द ग्राफ. जब आपने मॉर्निंग में दी तो देयर इज अ सर्ज ऑफ इंसुलिन. ये कौन सी इंसुलिन है? ये बोलस डोज था, और फिर ये इसका बेसल डोज है जो चलता रहा रात तक 12 घंटे तक. फिर ये आपने दोबारा से रात को लगाई तो फिर ये बोलस था और ये बेसल था. अच्छा, अगर इसमें देखें दिन में 2 बार अगर आप प्रीमिक्स दें तो बेसल तो आपको फुल कवरेज मिल गई. देखें, बेसल आपको तकरीबन पूरी कवरेज मिल गई, डे टाइम, पूरे 24 घंटे कवरेज रफली मिल गई. लेकिन बोलस आपको दिन में 2 जगह मिल रहा है, ब्रेकफास्ट पे और डिनर पे. यूजुअली आप 2 बार देते हैं तो लंच पे आपको बोलस कवरेज नहीं मिल रहा. तो या तो लंच को आप थोड़ा सा कम करा दें मरीज के, या लंच पे कोई टैबलेट ऐड कर दें, या फिर आपको लंच पे अलग से कोई शॉर्ट एक्टिंग या रैपिड एक्टिंग बोलस इंसुलिन ऐड करनी पड़ेगी. इसका मतलब है कि प्रीमिक्स अगर आप 2 बार दे रहे हैं तो आपने बेसल पूरा कवर कर लिया और बोलस आपने ब्रेकफास्ट और डिनर का बोलस कवर कर लिया, लंच वाला बोलस आपका रह गया. तो वहां पे आप अलग से एक बोलस इंसुलिन डाल सकते हैं, लेकिन जाहिर है फिर आपके इंजेक्शन 3 हो जाएंगे. बेनिफिट्स क्या हैं? इट टारगेट्स मील टाइम ग्लूकोज एज वेल, राइट? एंड इट कैन बी इनिशिएटेड एज 1 इंजेक्शन. पहले आप हो सकता है सिर्फ डिनर से शुरू करें. पाकिस्तान में लोगों के डिनर हैवी होते हैं ना, तो आमतौर पे मैं अगर मरीज को एक इंजेक्शन शुरू करना हो तो या तो बेसल ग्लार्जीन या डेटेमेर से शुरू करता हूँ रात में, या फिर प्रीमिक्स रात से शुरू कर देता हूँ, ताकि बाद में प्रीमिक्स को ही 2 बार कर दिया जाए. तो आसान होता है ना, फिर मरीज को इंसुलिन चेंज नहीं करनी पड़ती, वही इंसुलिन 1 से 2 बार करना होता है. तो यू कैन स्टार्ट विद 1 इंजेक्शन पर डे एंड देन गो ऑन टू 2 इंजेक्शंस पर डे. और मैंने बताया कि आप 3 इंजेक्शन भी पर डे दे सकते हैं. लिमिटेशन, अच्छा इसकी एक इंपॉर्टेंट बात है कि इट इज सूटेड टू पीपल विद फेयरली रेगुलर लाइफस्टाइल हो. सुबह 8 बजे नाश्ता, 2 बजे खाना, रात 8-9 बजे डिनर, रेगुलर लाइफस्टाइल. अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि लंच पता नहीं होगा, डिनर 8 बजे के बजाय रात के 2 बजे कभी कर रहे हैं, देन प्रोबेबली इट विल नॉट वर्क. क्योंकि ये तो आपको दिन में मील्स को सेट टाइमिंग्स पे लेना है, क्योंकि आपने सुबह तो डोज ले लिया, अगर आप लंच नहीं करेंगे तो लो हो जाएगी शुगर. एंड देन द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट देयर हैज टू बी स्नैक्स आल्सो. अगर आपने प्रीमिक्स्ड ह्यूमन इंसुलिन यूज की है तो टेक स्नैक्स एज वेल. प्रीमिक्स्ड एनालॉग्स में भी स्नैक लेने चाहिए, लेकिन वहां बहुत जरूरत नहीं रहती, बिकॉज एनालॉग रैपिड एक्टिंग विल गो अवे इन 4 आवर्स, राइट? लिमिटेशन क्या है? मे नॉट कवर लंच टाइम. लंच को तो केटर ही नहीं किया हमने. फिर है लिटिल डाइटरी फ्लेक्सिबिलिटी. अब आप ये भी नहीं कर सकते लंच पे बहुत ज्यादा खाना खा लें, क्योंकि आप तो इंसुलिन नहीं लगा रहे हैं लंच पे. तो द होल पॉइंट इज दैट दिस इज फॉर पीपल हु हैव अ फिक्स्ड लाइफस्टाइल, ठीक है? अब है एनालॉग बेसल बोलस थेरेपी. ये दिन में 4 इंजेक्शन है. आपने 3 बार बोलस इंसुलिन लगाई, 1 बार बेसल इंसुलिन लगाई. ये दिन में 4 बार इंजेक्शन आपने मरीज को लगाए. ऑब्वियसली दिस इज द मोस्ट फिजियोलॉजिकल ट्रीटमेंट. लेकिन मरीज जो है इसमें कॉम्प्लायंस बिकम्स अ प्रॉब्लम. मरीज कहते हैं लंच वाले इंसुलिन छोड़ दो, कभी बेसल इंसुलिन छोड़ दो.
The most important point is this regimen is closest to natural insulin production. फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, आपने लंच नहीं करना, लंच वाली बोलस छोड़ दी, आपने डिनर हैवी करना है, थोड़ी ज्यादा इंसुलिन लगा दी, आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया, नहीं लगाई, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। बट अगेन 4 बार इंसुलिन है तो हाईली मोटिवेटेड लोगों के लिए यूज हो सकती है, पर जाहिर है 4 बार आप इंसुलिन लगाएंगे तो चेक भी करना पड़ेगा, यू नीड अ चार्ट, तो पता हो कि हर खाने के बाद कितनी आती है, फास्टिंग कितनी आती है। सो लिमिटेशन ये कि मल्टीपल इंसुलिन इंजेक्शन है, 4 इंजेक्शन है, आमतौर पर लोग मना कर देंगे। मॉनिटरिंग ग्लूकोज की बढ़ जाएगी, डोज एडजस्टमेंट जाहिर है फिर 2 टाइम की 1 टाइम तो नहीं लग रही, 4 टाइम लग रही है तो 4 टाइम के डोज सेट करने। कमिटेड और मोटिवेटेड लोगों के लिए है, बिजी हेक्टिक लाइफस्टाइल वालों के लिए, जिनके मील्स का कुछ पता नहीं है, जो यंग लोग हैं, मोटिवेटेड लोग हैं, उनके लिए ज्यादा है। Now let's come on to the last part. It's probably going to take another 5-7 minutes I think. How to calculate the daily dose? देखिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करके चलूं कि हमने बात की कि इंसुलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन इस बहस में नहीं पढ़ना, असल चीज है कि दे दें जब जरूरत हो, दैट्स द होल इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड वी नीड टू कंट्रोल द HbA1c सूनर द बेटर। फिर जब हम देने लगेंगे तो हमने बात की बेसल बोलस की। बेसल हमने कहा दिन में 1 बार या 2 बार दे सकते हैं, 1 बार देंगे 24 घंटे वाली और 12 घंटे वाली बेसल है तो 2 बार देंगे। बोलस इंसुलिन दिन में 3 बार लगते हैं। आइडियल इंसुलिन है बेसल बोलस, जिसमें दिन में 4 बार इंजेक्शन लगेंगे। प्रीमिक्स की हमने बात की कि प्रीमिक्स में बेसल बोलस दोनों होती हैं, ये दिन में 2 बार देनी है। प्रीमिक्स ह्यूमन इंसुलिन की भी मैंने बताया, प्रीमिक्स एनालॉग भी बता दिया। फिर हमने बात की कि बेसल इंसुलिन वंस डेली जो देनी है रात में, वो सिर्फ फास्टिंग कंट्रोल करेगी। एक इंजेक्शन है लेकिन फास्टिंग कंट्रोल हो जाएगी, फास्टिंग कंट्रोल होगी तो पूरे दिन की थोड़ी तो बैठ जाएगी शुगर। रैंडम शुगर्स के लिए अगेन यू नीड बोलस इंसुलिन। अब आपने फैसला कर लिया कि मुझे इस पर्टिकुलर पेशेंट को, फॉर एग्जांपल फास्टिंग ब्लड शुगर खराब है, मैं सिर्फ बेसल इंसुलिन स्टार्ट करूंगा रात में, ग्लार्जीन या डेटामेर। ओके, फिर आपने फैसला किया कि नहीं, ये तो बेसल बोलस दोनों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि फास्टिंग भी खराब है, रैंडम भी खराब है। आई विल स्टार्ट दिस पेशेंट ऑन ट्वाइस डेली प्री-मिक्स्ड इंसुलिन, चाहे ह्यूमन मिक्सचर हो चाहे एनालॉग। मैं गुजारिश करूंगा, मैं पाकिस्तान में बहुत ज्यादा देखता हूं कि लोग एनालॉग इंसुलिन बहुत ज्यादा लेते हैं, ठीक है। एनालॉग इंसुलिन आर 3 टाइम्स कॉस्टली देन ह्यूमन इंसुलिन। आप जब एनालॉग इंसुलिन यूज करते हैं कॉस्ट 3 गुना बढ़ जाता है, ह्यूमन इंसुलिन की कॉस्ट 3 गुना कम है। उसी मरीज का 2000 का खर्चे की जगह 6000 का खर्चा हो जाएगा। भाई पाकिस्तान इज नॉट अ रिच कंट्री, पीपल हैव टू पे अ लॉट ऑफ थिंग्स आउट ऑफ देयर ओन पॉकेट। लोगों को टैक्स भी भरना है और टैक्स के बाद हॉस्पिटल की फीसें भी खुद भरनी है, एजुकेशन भी खुद देना है। तो जरा सा देखा करें कि कौन एनालॉग ले सकते हैं। सबको नहीं लिखते एनालॉग, सबको लिखना है तो ह्यूमन इंसुलिन लिखें। हाँ, कोई आपके पास रिच आदमी आ गया है जो आप समझते हैं कि अफोर्ड कर सकते हैं, उसको आप लिखें। एनालॉग में फायदे हैं क्योंकि एनालॉग खाने से फौरन पहले लगाना है, हाइपो कम है, यूज करें, बट इन रिच पीपल नॉट यूज इट। मैं लोगों को देखता हूँ, मैं अपने दिल से बता रहा हूँ कि पीपल आर टेकिंग देयर चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल टू बेयर दिस कॉस्ट ऑफ एनालॉग इंसुलिन। एक मरीज का, उसकी जो पूरे प्रेस्क्रिप्शन का खर्चा था, वो अभी कुछ महीनों पुरानी बात है, मैंने पूछा कितना खर्चा है भाई पूरे प्रेस्क्रिप्शन का, आफ्टर सीइंग द होल प्रेस्क्रिप्शन। ही टोल्ड मी डॉक्टर अली दिस इज रफली 25,000 PKR, 25,000। उसको हमने कट किया और 6-7 हजार पे ले। लिटरली द फैमिली वाज अमेज्ड। आपके 17-18 हजार रुपए बच रहे हैं, आप उसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। प्लीज लुक इनटू दिस, आवर एथिक्स हैव टू बी ऑन द टॉप। चाहे कितना भी आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। योर पेशेंट शुड बी द कोर। आपका पेशेंट आपका अपने घर वाले की तरह, ट्रीट योर पेशेंट एज योर ओन फैमिली मेंबर एंड देन राइट इंसुलिन। I categorically am stating that most people in Pakistan, they do not need analog mixtures and analog insulins. They need more of human insulins, and I'm not afraid to tell this on any forum. So let's move on and study starting daily dose insulin units, right? So अगर आप बेसल इंसुलिन दे रहे हैं किसी को, बेसल, तो आपने फैसला किया कि मुझे ग्लार्जीन देनी है या डेटामेर देनी है, बेसल देनी है, तो बेसल आप शुरू करेंगे 0.1 to 0.2 यूनिट पर kg। अच्छा, अगर कोई 60 kg का है, फॉर एग्जांपल 60 kg है, तो बेसल का डोज क्या है? 0.1 यूनिट टू 0.2 यूनिट। 60 kg का 0.1 कितना बनता है? 6 यूनिट। 60 का बनेगा 6 यूनिट, 80 का बनेगा 8 यूनिट, 100 का बनेगा 10 यूनिट। आसान है। 60 kg का मतलब है 6 यूनिट, और 0.2 का मतलब होता है, डबल कर दें 6 का 12 यूनिट। इसका मतलब है कि आप 6 से 12 यूनिट स्टार्ट करेंगे बेसल इंसुलिन के, ग्लार्जीन या डेटामेर के। अगेन ग्लार्जीन और डेटामेर बेसल इंसुलिन है लेकिन कॉस्टली है। एनपीएच सस्ती है लेकिन एनपीएच में पीक आती है, हाइपो का चांस ज्यादा है,
वी ऑल एग्री टू दिस. कीप इन माइंड, कोई आपका ठेले वाला है उसको ग्लार्जीन लिख के प्रॉबेबली देंगे तो फंस जाएगा. ठीक है. सो ग्लार्जीन एंड डेटिमर इफ यू आर यूजिंग basal insulin, if you are using 0.1 to 0.2 unit per kg, 60 kg है तो 6 से 12 यूनिट. फॉर एग्जांपल 180 की फास्टिंग है तो प्रॉबेबली 6 यूनिट से शुरू करें. 250 की फास्टिंग है 10-12 यूनिट से शुरू करें. 350 की है तो शायद 14-16 यूनिट से भी आप शुरू कर सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन यू. कोई फिक्स इंसुलिन का डोज नहीं है किसी पर्टिकुलर मरीज में, आपको फैसला करना. ठीक है. लेकिन रूल क्या है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 0.1 to 0.2 यूनिट से करें. फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको डेली पेशेंट अपना ब्लड शुगर चेक करे फास्टिंग. मैं अगर सिर्फ बेजल देता हूं तो मैं मरीज को कहता हूं 3 दिन तक फास्टिंग चेक करो. 3 दिन तक अगर टारगेट रेंज में नहीं आई, जो भी मैंने टारगेट सेट किया है 120, 130, 140 जो भी है मैंने सेट किया, जो भी मरीज के लिए टारगेट में नहीं है तो 2-4 यूनिट बढ़ा दो. फिर 3 दिन देखो, फिर टारगेट में नहीं है, फिर 2-4 यूनिट बढ़ा दो. जब टारगेट रेंज के अंदर आ जाए तो वो यूनिट फिर आप जारी रखें. दिस इज हाउ यू स्टार्ट बेसल इंसुलिन. Now let's move on to premixed insulin या basal bolus insulin. अच्छा, premixed में और basal bolus में, क्योंकि basal bolus में तो basal bolus दोनों है, premixed में भी दोनों है, तो यहाँ पे 0.1, 0.2 यूनिट नहीं है. यहाँ पे कितने यूनिट से शुरू करेंगे? 0.5 to 0.6 यूनिट पर केजी. 0.5 यूनिट पर केजी. अच्छा, 0.5 यूनिट पर केजी. अच्छा, 0.5, 0.6 से 0.5 आसान रहता है, याद रहता है. तो 60 केजी का 0.5 कितना होता है? 30 यूनिट. 60 केजी में इसका मतलब है कि आपको 30 यूनिट्स देने. अच्छा, अब पहले बात करेंगे प्रीमिक्स की. अब आपको ये तो पता चल गया कि मुझे प्रीमिक्स देना है, आपने सोच लिया. 60 केजी था तो आपने डिवाइडेड 60 मल्टीप्लाई बाय 0.5 किया या डिवाइडेड बाय 2 कर दिया. आपको पता है कि मुझे 30 यूनिट देने. अब 30 यूनिट अगर प्रीमिक्स के देने तो कैसे देंगे? पहला काम करेंगे 30 के 3 टुकड़े कर देंगे. 30 के डिवाइडेड बाय 3 कर दें. 10 10 10. 2/3 इन द मॉर्निंग में देना है, 1/3 इन द नाइट. यानी 30 के 3 टुकड़े करें. 2 टुकड़े 20 यूनिट्स मॉर्निंग में, 1 पार्ट 10 यूनिट्स इन द इवनिंग. सुबह 20 क्यों दिए? क्योंकि सुबह के यूनिट 2 मील्स केटर करते हैं, ब्रेकफास्ट एंड लंच. और रात को 10 दिए क्योंकि सिर्फ एक ही मील है, डिनर. दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग डोज. अक्सर ये होता है हमारे क्लिनिक में मरीज आता है, यूनिट ले रहा होता है, सुबह 30, रात में 60. तो जो हमारे ट्रेनीज होते हैं पूछते हैं कि सर आपने पढ़ाया तो ये था कि सुबह डबल होगा, रात में सुबह 20, रात 10. यहाँ तो उल्टा है, सुबह 30, रात में 60. So I always say, look, in this part of the world, people do not have a heavy breakfast. Rather, they have a heavy dinner. तो जरूरी नहीं है कि आप 20-10 रखें. ये भी कर सकते हैं कि सुबह आपने सुबह 16 कर दिया, रात को 14 कर दिया, थोड़ा सा सुबह कम कर दिया, रात में थोड़ा बढ़ा दिया. फिर ये सिर्फ स्टार्टिंग डेली डोज यूनिट की बात हो रही है. ये तो स्टार्ट है. गाड़ी आप स्टार्ट करते हैं 1 गियर पे और यू मूव टू 2nd, 3rd, 4th गियर. ठीक है. कहने का मतलब है दिस इज जस्ट द स्टार्ट. देन यू नीड टू टाइट्रेट अकॉर्डिंग टू द ब्लड शुगर्स. क्योंकि टाइम कम है, इस प्रेजेंटेशन में हम टाइट्रेशन पे बात नहीं कर सकेंगे. फिर किसी प्रेजेंटेशन, किसी वेबिनार में हम इंसुलिन केसेस में कोशिश करूंगा ले आऊंगा इंशाल्लाह, होपफुली सून. तो उस पर फिर हम टाइट्रेशन पे भी बात करना शुरू करेंगे. आज शायद बात नहीं हो सकेगी इस पर. ठीक है, शायद क्या वैसी बात नहीं हो सकेगी. आई एम नॉट प्रिपेयर्ड. सो प्रीमिक्स इंसुलिन आप शुरू कैसे करेंगे? 0.5 यूनिट पर केजी. 60 केजी है तो 30 यूनिट, 80 केजी है तो 40 यूनिट. 3 टुकड़े कर दें 30 के. 10 10 10. 20 यूनिट आपने सुबह दे दिए, 10 यूनिट आपने रात में दे दिए. नाउ बेसल बोलस इंसुलिन. आपने फैसला किया कि मुझे बेसल बोलस इंसुलिन यूज करना है. अच्छा, बेसल बोलस में भी रूल वही है, 0.5 यूनिट पर केजी. तो 60 केजी में कितने यूनिट है? 30. अच्छा, ये तो 4 इंसुलिन लगेंगे. वो तो 30 में 2 इंजेक्शन थे ना प्रीमिक्स में. बेसल बोलस में देयर आर 4 इंजेक्शंस. तो आप क्या करेंगे? डिवाइड द डेली डोज इनटू 2. 30 को डिवाइड कर दें, 15 15. 50% बेसल, 50% बोलस. यानी 30 में से 15-15 यूनिट करें. 15 यूनिट बेसल के, 15 यूनिट बोलस के. अच्छा, बोलस में तो फिर 3 बोलस इंसुलिन है, तो 15 यूनिट है तो 5-5-5 कर दिए. ठीक है. अगेन 50% बेसल, 50% बोलस. अब दोबारा देख लीजिए, 30 यूनिट देने थे मरीज को, 15-15 आपने कर दिया. बेसल के 15. अच्छा, बेसल के 15 अगर आप ग्लाजीन दे रहे हैं, डेटिमर दे रहे हैं, तो आपने 15 यूनिट एक टाइम पे दे दिए मरीज को. अब बोलस के भी 15 है. अच्छा, बोलस अगर मरीज 3 खाने खाता है तो 5-5-5 कर दें. अगर 2 खाता है तो 8 और 7-7 कर दें. ठीक है. सो यू अंडरस्टैंड कि अगर मैं दोबारा क्विकली ये चीजें दिखाना चाहता हूं. अगर बेसल इंसुलिन है 0.1 to 0.2 यूनिट पर केजी. 60 केजी में 6 to 12 यूनिट वंस डेली. प्रीमिक्स इंसुलिन है या बेसल बोलस है 0.5 यूनिट पर केजी. प्रीमिक्स इंसुलिन है, आप 3 टुकड़े करें, 2 parts in the morning 20, 1 part in the night 10. ये तो एग्जाम्पल है.
अगर बेसल बोलस है, आपने 50-50 कर दिया, 50% डोज इन द मॉर्निंग, 50% डोज बेसल, 50% डोज बोलस। बेसल एक बार दिन में दे दिया 15 यूनिट, बोलस के 15 यूनिट आपने 3 बार 5-5-5 कर दिए, ठीक है। Again, people are raising hands. I would apologize. We'll take questions at the end in the question answer session. You'll post your questions, right? So again, this was how you start the basal bolus insulin. Again, some words on deciding the best insulin regimen for an individual patient. Best possible regimen कैसे decide करें? Does the patient eat the same number and types of meal each day? पहले देखना है कि पेशेंट का लाइफस्टाइल क्या है, क्या 3 खाने खाता है, 2 खाने खाता है, खाने का टाइम मिलता भी है कि नहीं मिलता है। Does the patient have a busy hectic lifestyle? ये तो नहीं होगा कि डिनर ओमिट कर देगा, लंच ओमिट कर देगा, या उसका एक फिक्स लाइफस्टाइल है। फिक्स लाइफस्टाइल में देखा प्रीमिक्स इंसुलिन ज्यादा इजी है। How often does the patient exercise? एक्सरसाइज कर रहा है नहीं कर रहा, कितना मोटिवेटेड है, आपने 4 इंजेक्शन दे दिए, वो 1 लगाने के लिए भी तैयार नहीं। How many times a day would the patient be willing to test their blood glucose? आपने 4 टाइम इंसुलिन दिया, मरीज हफ्ते में 1 शुगर चेक करता है। You can't make it. आप 4 टाइम इंसुलिन दे रहे हैं तो आपको 4 शुगर्स तो देखनी है ना, दिन में नहीं देखनी, लेकिन 4 एस्पेक्ट तो देखने हैं। तो आज फास्टिंग देखना है, पोस्ट ब्रेकफास्ट, पोस्ट लंच, पोस्ट डिनर। बेसल बोलस में आपने देखने हैं टाइम्स, प्रीमिक्स में भी आपको काफी चीजें देखनी है। बेसल इंसुलिन के साथ भी प्राइमरीली फास्टिंग, लेकिन बाकी ब्लड शुगर भी आपको चेक तो करनी है। डज द पेशेंट लिव अलोन? अकेला रहता है, किसी के साथ है, कितनी सपोर्ट है, कॉस्ट क्या है, पेशेंट करता क्या है, पेशेंट अफोर्ड भी कर सकेगा अगर आपने ग्लार्जीन लिखी है और नई इंसुलिन लिखी है कि नहीं लिखी। पाकिस्तान में आने वाली जितनी भी इंसुलिन हैं जो आ चुकी हैं, मैंने कुछ पे बात नहीं करी क्योंकि हम ज्यादा बात कर रहे हैं जनरल पॉपुलेशन ऑफ डॉक्टर्स के लिए, स्पेशलिस्ट के लिए नहीं कर रहे हैं टॉक। तो जाहिर है मैंने अभी नई इंसुलिन को बिल्कुल बात नहीं की, दे आर वेरी कॉस्टली। पाकिस्तान में कॉस्टली इंसुलिन लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। सो अगेन समरी ऑफ द 4 स्टेप प्रोसेस। देखिए बेसल बोलस के लिए कौन से लोग सूटेबल हैं? हेक्टिव लाइफस्टाइल हो, frequent vigorous exercise करने वाले लोग, well motivated, able to cope, good level of support, पढ़े लिखे लोग जो समझ सकते हैं चीजों को, मैनेज कर सकते हैं, लाइफस्टाइल हेक्टिव है, उनके लिए बेसल बोलस है। प्रीमिक्स इंसुलिन किसके लिए? प्रीमिक्स मैंने आपको बताया था कि फिक्स लाइफस्टाइल वालों के लिए, मोर रेगुलर लाइफस्टाइल, 8 o'clock ब्रेकफास्ट, 2 बजे दोपहर का खाना, रात के 8-9 बजे खाना, mild less frequent exercise, lives alone, less able to cope with demanding insulin regimen and lower level of support. Again, thank you very much. I enjoyed doing it. It's always a fun doing it. So this was probably our ninth webinar. In fact, inshallah, this was probably the 8th or 9th webinar. Now all attendees will be emailed an insulin workshop. So this was also the second webinar. Second webinar में सिर्फ 34 लोग थे. So obviously there were less people. Now we have a big pool of people with us. So insulin worksheet मैं आप लोगों को email करूँगा जितने लोगों ने भी अटेंड किया है। I'll give you a few days, आप लोग मुझे आंसर्स लिख के भेजें। जाहिर मैं आंसर्स चेक नहीं कर सकूंगा, लेकिन मैं आपको करेक्ट आंसर शीट, जितने भी लोग आंसर शीट रिटर्न बैक करेंगे, ऑल ऑफ यू विल गेट द करेक्ट आंसर शीट। इसके करेक्ट आंसर्स क्या है मैं सारी चेक नहीं कर सकूंगा, बट आई विल सेंड यू द करेक्ट आंसर्स। थैंक यू वेरी मच once again. It's always a pleasure. Now you have in your gadgets or laptop or mobile, you have question and answer. So at the moment the current participation इस वक्त जो लोग बैठे हैं 165 on my screen. We'll get the total number of attendees later, लेकिन इस वक्त जो बैठे हैं मेरी स्क्रीन पे 165 हैं. So obviously मैं सारे जवाब शायद नहीं दे सकूंगा, so I'll try and answer as many as I can, right? And if there is still any burning question left after this, we can always answer it later. I'll try to answer questions that benefit most of the people rather than 1 or 2 people, right? So somebody has asked, so just hand raise ना करें, question answer session में आप डाल दें, the question answer is right in front of me, मैं answer करता जाऊंगा and you will get a notification that your answer has been answered, your question has been answered live. So how do we do free mixing of insulin? Free mixing of insulin का मतलब ये है कि N और R आप अलग से दे रहे हैं। देखिए R जो है वो बेसल है, R जो है बोलस है, N जो है वो बेसल है। तो अगर आप फ्री मिक्सिंग करते हैं तो आप सुबह N और R देते हैं, रात को भी N और R देते हैं, और दोपहर में आप अकेले R दे सकते हैं। फ्री मिक्सिंग बहुत आसान है ना। R जो है वो बोलस है, तो R का इफेक्ट आपको 2 आवर्स आफ्टर मील पता चलेगा। N चूंकि बेसल है तो N का आपको अगले मील से पहले पता चलेगा। तो अगर आप सुबह N और R देते हैं
तो आर का आपको पता चलेगा 2 आवर्स आफ्टर ब्रेकफास्ट के, और एन का पता चलेगा प्री लंच और प्री डिनर। अगर रात को आप एन और आर देते हैं तो रात के खाने के 2 घंटे बाद आर का पता चलेगा कि क्या इफेक्ट है, और सुबह के टाइम एन का पता चलेगा। फ्री मिक्सिंग जो है बहुत कॉमनली यूज होती थी, और लेकिन विद द एडवेंट ऑफ मिक्सचर्स मोस्ट ऑफ द फ्री इंसुलिन हैज गॉन। फ्री इंसुलिन जाहिर है उसमें आपके पास रेशियो डिसाइडेड नहीं होता ना, आजकल की इंसुलिन में तो रेशियो फिक्स्ड है 70-30 या 75-25 या 50-50, और तो कोई रेशियो आता नहीं है। तो फ्री मिक्सिंग का मतलब होता है कि एन और आर अलग से मिला के लगाओ सिरिंज से। अच्छा पहले मैं बता दूं, पहले आर लेते हैं फिर एन लेते हैं सिरिंज में। फ्री मिक्सिंग ऑफ इंसुलिन में आपके पास रेशियो फिक्स नहीं है, आप अपना रेशियो बनाइए अकॉर्डिंग टू द नीड। लेकिन बहुत जरूरी है कि मरीज जो है अपना चेक करे ब्लड शुगर्स, और चेक करके एक चार्ट बना के आपके पास लाए ताकि आप इंसुलिन को एडजस्ट कर सके। द क्वेश्चन इज why can we give premix insulin thrice a day? Won't basal insulin overlap as minimum half-life of basal is 12 hours? Absolutely agreed. देखिए जब आप प्रीमिक्स इंसुलिन दिन में 3 बार यूज करते हैं, तो अगर आप प्रीमिक्स इंसुलिन 50-50 दे रहे हैं तो आप दिन में 3 बार दे सकते हैं। आपकी बात दुरुस्त है कि उसमें जो बेसल कंपोनेंट है उसकी हाफ लाइफ 12 घंटे, लेकिन आप हर एक को यूज नहीं कर रहे हैं, आप उसको यूज कर रहे हैं जहां जरूरत है। 50-50 में बोलस कंपोनेंट ज्यादा होता है, 50% होता है, बेसल कंपोनेंट कम होता है। अगर आप 20 यूनिट दे रहे हैं मिक्स 50 के, तो उसमें 10 यूनिट बोलस है, 10 बेसल है। तो आपको पता है कि आपको दिन में अगर 30 यूनिट बेसल देना है और आप मिक्स 50 के 20-20-20 लगाते हैं तो 30 बन गए बेसल के। ओवरलैप होगा लेकिन लो नहीं होना चाहिए। फिर ये तो देखिए दिस इज अ गेम, ये बिल्कुल गेम की तरह है। अगर आपने मिक्स 50 3 बार दिया और उसको हाइपोज हो रहे हैं प्री मील, तो आप समझ जाएं कि प्रोबेबली यू नीड फ्री मिक्सिंग देन। सो अगेन दिस इज अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू टू योर पेशेंट, कोई चीज फिक्स नहीं है। आर यू ऑल गेटिंग माय वॉइस? So are you all getting my voice now? Can you just tell me please? Because my own home computer is not getting the voice, right? Okay, so you're getting my voice. I got it, right? Okay. बेटा यहीं पे देखना कि आवाज आती है कि नहीं. So you're getting my voice? 1 or 2 yes more please. We are not getting it at our home right now. You all are getting my voice? Yes. Okay, great. Thank you. So when to start insulin in type 2 diabetes right from start? I told you that these days, you're getting the voice? Just try and reconnect it. Okay. So I told you that in diabetes, there is no certain thing as to when you should be starting your insulin, right? The only important thing is that your diabetes patient should be controlled. आजकल क्या हो रहा है? And this is mainly because the insulin making companies is promoting insulins a lot. जो जनरल प्रैक्टिशनर्स को पढ़ाया जा रहा है वो ये पढ़ाया जा रहा है कि इंसुलिन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, स्टार्ट इट राइट एट द स्टार्ट। दैट्स नॉट द केस, दैट्स नॉट द केस। कोई दुनिया की एक गाइडलाइन ऐसी नहीं है जो इंसुलिन को फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट बता दे, जो कह दे कि इंसुलिन दुनिया की पहली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। अगर आप नई गाइडलाइंस एडीए ईएएसटी की उठा के देखें या ईएससी ईएएसटी की उठा के देखें, आ गई है बस, या ईएससी ईएएसडी की गाइडलाइंस देखें, तो इंसुलिन के बारे में तो पूरे मोनोग्राम में आपको नजर नहीं आएगा। द होल पॉइंट इज कि पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है, उसको ब्रेक करने के लिए यू नीड मेटफॉर्मिन एट द स्टार्ट ऑफ डायबिटीज टाइप 2, यू नीड मेटफॉर्मिन इन मोस्ट पेशेंट्स। फिर आपके पास एसजीएलटी2 इनहिबिटर है जो वेट लॉस कराता है, फिर आपके पास डीपीपी4 इनहिबिटर है जो वेट न्यूट्रल है। इंसुलिन तो वेट गेन कराती है, तो इंसुलिन शुरू की दवा मेडिसिन नहीं है, इंसुलिन आप शुरू में यूज ना करें। हाँ, लेकिन अगर किसी की डायबिटीज बहुत खराब है, राइट एट द स्टार्ट 400 500 600 शुगर्स हैं, yes, you can start with insulin definitely. फिर पेशेंट को 4-6 महीने इंसुलिन देके you can try and bring that person to oral medications if that person has type 2 diabetes. कहने का मतलब ये है कि don't jump on insulin too soon, take your time with oral medications maybe, लेकिन इतना टाइम ना ले लें कि सालों निकल जाए, 6 महीने 9 महीने 12 महीने, then start on insulin, ठीक है। लेकिन शुरू यही करें कि आप स्टार्ट कोशिश करें कि दवाइयों से करें। शुरू में ही डायबिटीज बहुत खराब है, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद इंसुलिन। 4-6 महीने आप इंसुलिन दें, पेंक्रियास को रेस्ट दें, देन यू कैन स्विच बैक टू ओरल। वी डू इन many people. Again, what will be the starting dose for bolus insulin? देखिए मैंने आपको बताया कि 50% बेसल होता है, 50% बोलस होता है ना। तो अगर आपको किसी को सिर्फ बोलस देना है, आपने एक मरीज ऐसा देखा
जिसकी सिर्फ डिनर के बाद की शुगर बढ़ी हुई है, बाकी फास्टिंग भी सही है, पोस्ट ब्रेकफास्ट भी सही है, पोस्ट लंच भी सही है, सिर्फ डिनर के बाद खराब है। तो मैंने आपको बताया कि 0.5 यूनिट पर केजी होता है, 60 केजी के 30 यूनिट, फिर बोलस के होते हैं 15 यूनिट, 15 में से भी 5 बनता है एक टाइम का। लेकिन ये बातें थ्योरेटिकल है ना, ये बातें जरूरी नहीं है कि प्रैक्टिकली आप इसी तरह करें। थ्योरी कहती है कि 60 केजी मैन में आपको बोलस देना है तो एक टाइम पे 5 यूनिट दें, लेकिन ये स्टार्टिंग डोज है। अगर आपने 5 यूनिट दे दिया डिनर पे बोलस इंसुलिन का, और फिर मरीज दोबारा आता है और ब्लड शुगर फिर भी 250 है डिनर के बाद, तो आप 5 से बढ़ा दें, 8, 10, 12 करें, जब तक ब्लड शुगर रैंडम की पोस्ट डिनर की कंट्रोल नहीं होती है। तो अगेन ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, स्टार्टिंग डेली डोज यूनिट, ये एक रेफरेंस गाइड है टू स्टार्ट, उसके बाद एडजस्ट आपको खुद करते चले जाना। इंसुलिन स्लाइडिंग स्केल, इंसुलिन स्लाइडिंग स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्लाइडिंग स्केल इंसुलिन, अच्छा स्लाइडिंग स्केल नहीं है, इसको कहते हैं SSI, सप्लीमेंटल स्लाइडिंग इंसुलिन, SSI। अच्छा पाकिस्तान में इसको कहते हैं स्लाइडिंग स्केल इंसुलिन। ये सप्लीमेंटल इंसुलिन है। सप्लीमेंटल इंसुलिन का मतलब क्या होता है? एडिशनल इंसुलिन। हॉस्पिटल्स में क्या होता है हमारे सेटअप में कि हॉस्पिटल्स में अक्सर ये सप्लीमेंटल स्लाइडिंग इंसुलिन यूज होती है। फिक्स डोज बंद हो जाता है, दवाइयां बंद हो जाती है, और ये बैकअप इंसुलिन कह लें या SSI कह लें, सप्लीमेंटल इंसुलिन स्लाइडिंग स्केल जो भी कह लें, ये शुरू हो जाता है। इसको हम कहते हैं कॉमन बैड प्रैक्टिस। हॉस्पिटल में भी एक रेजीम होना चाहिए इंसुलिन का, या बेजल हो या बेजल बोलस हो, प्रीमिक्स्ड हो, दवा हो, कुछ भी हो, उसके साथ होता है सप्लीमेंटल स्केल। सप्लीमेंटल स्केल अकेला नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ अक्सर मरीजों में अकेला होता है। हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इन हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स के बारे में, उसमें सप्लीमेंटल स्लाइडिंग इंसुलिन की बात डिटेल में आएगी। बहरहाल घर में सप्लीमेंटल स्लाइडिंग इंसुलिन यूज नहीं करना चाहिए। मैं देखता हूँ अक्सर मरीज जो होते हैं उनके पास चार्ट होता है, इतनी आए तो इतनी लगाओ, इतनी आए तो इतनी लगाओ। घर में ऐसे नहीं होता, घर में तो डोज फिक्स करना है। हमें इंतजार नहीं करना कि शुगर बढ़ेगी तो हम यूनिट लगाएंगे, नो नो नो, शुगर बढ़नी ही नहीं चाहिए। तूफान आ जाएगा, घर खराब हो जाएगा, फिर खिड़की बंद नहीं करते हैं। तूफान आने से पहले खिड़की बंद करते हैं, डाकू आने से पहले दरवाजा लॉक करते हैं। सप्लीमेंटल स्लाइडिंग इंसुलिन हॉस्पिटल में यूज होती है एज अ सप्लीमेंटल इंसुलिन, उसमें भी कोई फिक्स रेजीम होनी चाहिए। घर में सप्लीमेंटल स्लाइडिंग इंसुलिन यूज करने की आम तौर पे कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। जो कमेंट्स हैं वो ज़ाहिर मैं पढ़ नहीं रहा, मैं सिर्फ उनको क्लिक करके, ताकि आपके उस पर आ जाए कि मैंने जवाब दे दिया। थैंक यू। How do you advise sugar monitoring for patients on insulin? Blood sugar monitoring again is not something that is wholly defined, right? So देखिए 4 टाइम पेशेंट के शुगर्स बड़े इंपॉर्टेंट है चेक करना। फास्टिंग, पोस्ट ब्रेकफास्ट, पोस्ट का मतलब है 2 आवर्स, पोस्ट ब्रेकफास्ट, फिर 2 आवर्स पोस्ट लंच, 2 आवर्स पोस्ट डिनर, फॉर गुड कंट्रोल। लेकिन अगर कोई एल्डरली है ना, जिसमें मैं चाहता हूँ कि लो नहीं हो जाए, उसमें मैं कहूँगा प्री मील्स कर लेते हैं, प्री ब्रेकफास्ट, प्री लंच, प्री डिनर। क्योंकि एल्डरली मरीजों में मैं लो से ज्यादा, मैं कहूँगा लो नहीं होनी चाहिए, तो वहां मैं पोस्ट से ज्यादा प्री पे डील कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे हाइपो की भी फिक्र है। ठीक है, तो शुगर अगर चेक करना है तो फास्टिंग, पोस्ट ब्रेकफास्ट, पोस्ट लंच, पोस्ट डिनर। लेकिन अगर एल्डरली है, आपको हाइपोस का डर है, तो फिर आप प्री मील्स चेक करें। अब मरीज दिन में 4 बार करता है कि दिन में 1 बार करता है कि 4 दिन में 1 बार करता है, ये डिपेंड करता है उसकी कंट्रोल पे। ज़ाहिर नया नया किसी को स्टार्ट किया है, मैं किसी को नई इंसुलिन स्टार्ट करता हूँ तो कहता हूँ दिन में 2 बार चेक करें, और 1 हफ्ते 2 हफ्ते में उसका चार्ट देख के डोज को एडजस्ट करना होता है। लेकिन अगर कोई फिक्स मरीज है मेरे जो रेगुलर इंसुलिन ले रहे हैं, बिल्कुल कंट्रोल्ड है, वो तो हफ्ते में कोई एक शुगर करते हैं, 1 हफ्ते में फास्टिंग कर लेते हैं, अगले हफ्ते पोस्ट ब्रेकफास्ट, अगले हफ्ते पोस्ट लंच, अगले हफ्ते पोस्ट डिनर। तो इट डिपेंड्स ऑन, फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट इट डिपेंड्स, राइट? So अगेन द आंसर इज, इफ बेसल बोलस में हम क्या ज्यादा मरीज को कहें, फास्टिंग ज्यादा करें या पोस्ट? देखिए आपको गाड़ी में जब टायरों में हवा भर आती है ना, एक टायर में भी हवा कम होती है तो चारों टायर चेक होते हैं, आपको पता है बात। तो जब आप बेसल बोलस दे रहे हैं तो आपको 4 शुगर चाहिए। फास्टिंग का पता होता कि आप बेसल को एडजस्ट करें, और तीनों पोस्ट प्रेंडियल्स आपको पता होता कि आप एडजस्ट करें। तो आप मरीज को ये नहीं कहेंगे कि फास्टिंग ज्यादा करना वो कम करना। हाँ ये हो सकता है कि अगर मेरे पास एक विजिट पे मरीज आया जो बेसल बोलस इंसुलिन ले रहा है और उसकी फास्टिंग खराब थी और मैंने बेसल को एडजस्ट किया है, तो मैं कहूंगा यार बेसल ज्यादा कर लेना, बोलस भी करते रहो कभी कभी। करने तो चारों ही हैं। हाँ ये हो सकता है जो खराब है उस वाली को ज्यादा करा लें आप, लेकिन करने आपको सारे हैं। Okay, so again, very important question is, do you advise dose adjustment for bolus insulins in type 2 diabetes per meal depending on sugars? इसका मतलब है कि क्या बोलस इंसुलिन को
हर खाने के साथ ऊपर नीचे करें. No. I mean, in Pakistan, I can be very frank with you. In Pakistan, we don't have a population that will understand most of the things, right? In terms of our patients, right? आप ये नहीं कह सकते हैं कि ज्यादा खाओ तो 2-4 यूनिट ज्यादा लगाना, कम खाओ तो कम लगाना. In type 1 diabetics, we routinely do this. Type 2 diabetics में मरीज के खाने की क्वांटिटी को फिक्स करते हैं कि आपने ब्रेकफास्ट इतना लेना है तो इतना ही लेना है. आपने दोपहर में 2 रोटी खानी है तो 2 ही रोटी खानी है. ये नहीं हो कि कभी 1 रोटी खाई, कभी 3 रोटी खाई. 1 खाएंगे तो शुगर गिर जाएगा, 3 खाएंगे तो बढ़ जाएगा. हमारी कोशिश होती है कि पेशेंट्स को भी लिमिट द पेशेंट्स विद देयर मील्स, मील क्वांटिटीज को लिमिट करें, ना कि उनको कहें कि अच्छा 1 रोटी खानी हो तो 6 यूनिट लगाना, 2 ही रोटी खानी हो तो 10 यूनिट लगाना, 3 रोटी खानी हो तो 14 यूनिट लगाना. दिस बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एंड टीडियस. जो हमारे पढ़े लिखे मरीज होते हैं, दे डू इट, वो करते हैं. बट वी डिस्करेज दिस. हम कहते हैं कि फिक्स डोज पे चलें. एंड आई कैन टेल यू मोस्ट ऑफ माय पेशेंट्स ऑन फिक्स डोजिंग्स एंड फिक्स मील क्वांटिटीज दे डू गुड. उनको पता है कि कभी ज्यादा खाया तो थोड़ा बढ़ा दिया, लेकिन ज्यादातर मरीजों में हम डिस्करेज करते हैं. हम कहते हैं कि मील्स को लिमिट करें, मील क्वांटिटी को सेम रखें, ना कि हर बोलस को ऊपर नीचे करते रहें. क्योंकि वो फिर मरीज जब चार्ट भी लाएगा तो हमारी भी समझ नहीं आता कि करना क्या है. मरीज खुद नहीं समझ रहा तो हमारी भी समझ में नहीं आएगा. दिस बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. There are many questions. I have 74 questions on my screen. I'll try and answer as many as I can, right? Those of you who are feeling it's already getting close, it's 10 o'clock. Those of you who are feeling sleepy, they can leave. We'll continue with the question answer session though. Recordings of previous sessions were not done. Good thing is that this session is recorded. Inshallah, we can have you can have the copy later. How to add oral drugs with insulin? Again, very important. Oral drugs with insulin sometimes become a necessity, right? Because you need metformin in many patients who are overweight or obese to cut down the dose of insulin. Otherwise, insulin weight बढ़ाती चली जाएगी. So, अच्छा insulin weight भी कब बढ़ाती है? जब when patient is not compliant with the diet. जब patient बदपरहेजी करेगा, तो insulin ज़्यादा लगाएगा, बदपरहेजी करेगा, weight will go up. हम सब के अंदर insulin है. हमारा तो weight नहीं बढ़ता रहता. तो मरीज के अंदर भी इंसुलिन है. जाहिर है जब कैटाबॉलिक स्टेट में पेशेंट आता है, हम इंसुलिन स्टार्ट करते हैं तो शुरू में चंद किलो बढ़ जाता है, 3, 4, 5 किलो, बस फिर नहीं बढ़ना चाहिए. अगर किसी मरीज के इंसुलिन पे वजन बढ़ता ही चला जा रहा है, कीप इन माइंड कि वहां पे बदपरहेजी हो रही है. देयर इज डाइटरी नॉन कॉम्प्लायंस, दैट इज द रीजन द वेट इज गोइंग अप. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज मेडिकेशंस विद इंसुलिन जुडिशियसली. देखिए, आप इंसुलिन के साथ SGLT2 इनहिबिटर्स यूज कर सकते हैं, आप इंसुलिन के साथ DPP4 इनहिबिटर्स यूज कर सकते हैं, आप मेटफॉर्मिन यूज कर सकते हैं. आई यूज metformin in many of my overweight and obese patients with type 2 diabetes on insulin. You can also use GLP-1 analogues with insulin. आप ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं. But again, there is nothing like fixed things, right? हर मरीज एक इंडिविजुअल मरीज होता है. हमारे एक प्रोफेसर थे, मैं आपको बताता चलूं, वो ग्लिमिपिराइड दिन में 3 बार देते. आज से 15 साल पहले की बात है. मैं हैरान होता था, ग्लिमिपिराइड दिन में 3 बार. Now I realize you can give it. वो 70-30 इंसुलिन 3 बार देते थे, जिस जमाने में कॉन्सेप्ट ही नहीं था. वो 70-30 इंसुलिन आज से 15 साल पहले 1 बार देते थे. उस जमाने में था कि 2 बार देना है 70-30. आज स्टडीज बताती है कि आप 1 बार से स्टार्ट करें, दिस इज गुड, आप 3 बार भी दे सकते हैं. सी, सो यू हैव टू कीप अ विजन. आपकी मरीज की डायबिटीज कंट्रोल हो, चाहे रेजिमेन आपने कोई भी लिया हो. हाँ, रेजिमेन बिल्कुल ऑड नहीं लग रहा हो. ये ना हो कि आप प्रीमिक्स यूज कर रहे हैं 2 बार और अलग से एक बेसल यूज कर रहे हैं. लुक्स प्रीटी ऑड, राइट? सो ऑड नहीं लग रहा हो बिल्कुल, बट यू कैन यूज things that you want to use if you want to control your diabetes. Again, starting dose of NPH insulin. Thank you. Starting dose of NPH insulin. Now, NPH again, you are using it as a basal insulin. So when you are using NPH alone as a basal insulin, again 0.1 to 0.2 unit per kg. For example, you are using NPH at bedtime to control fasting in a 60 kg man. Probably I would start with maybe 6 units. लेकिन देखिए, अगर फास्टिंग शुगर 150 है तो मैं शायद 4-6 यूनिट यूज करूंगा. फास्टिंग शुगर 250 है तो मैं शायद 10-12 यूनिट से शुरू करूंगा. Again, it depends. 0.1 to 0.2 unit is just a range. Starting एक गाइड है. उसके बाद तो ब्लड शुगर भी गाइड करेंगे. एक मरीज जिसकी 200 है ब्लड शुगर है वो अलग है, जिसकी 300 है वो अलग है, जिसकी 400 है वो अलग है. ये सारे अलग अलग मरीज हैं और इन सब में इंसुलिन का डोज अलग अलग है. Okay, so again the question is, can we give premixed insulin once daily with some medication? हम करते हैं ये.
व्हाट वी डू इज कि देखिए अब जब हमें वंस डेली शुरू करना होता है ना, पाकिस्तान में लोगों का डिनर हैवी है, तो मैं अक्सर ये करता हूँ कि प्री डिनर 70-30 प्रीमिक्स इंसुलिन शुरू कर देता हूँ। और जाहिर प्रीमिक्स मैंने रात में दी है तो सुबह तक 12 घंटे में तो इट विल गो अवे, राइट, हाफ लाइफ है ना 12 घंटे में तो इट विल गो टू द मोस्ट एक्सटेंट। तो रात में तो मैंने 70-30 दे दी, अब सुबह आई कैन यूज मेडिकेशन। रात में भी आप मेडिकेशन यूज कर सकते हैं, आप मेटफॉर्मिन यूज कर सकते हैं, आप DPP-4 इनहिबिटर रात में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप सल्फोनाइल यूरिया यूज नहीं कर सकते। प्रीमिक्स इंसुलिन के साथ आप सल्फोनाइल यूरिया यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने प्रीमिक्स इंसुलिन रात में दी है तो मे बी ग्लिक्लोजाइड आप सुबह यूज कर लेंगे, ग्लिक्लोजाइड प्लेन, या ग्लिक्लोजाइड MR भी पहले 12 घंटे ज्यादा काम कर सकती है, तो आप ग्लिक्लोजाइड सुबह यूज कर सकते हैं। तो प्रीमिक्स अगर आप 2 बार यूज कर रहे हैं तो आप सल्फोनाइल यूरिया यूज नहीं करेंगे साथ में। लेकिन अगर आप प्रीमिक्स 1 बार यूज कर रहे हैं रात में, तो आप सुबह सल्फोनाइल यूरिया यूज कर लीजिए। अगर आप प्रीमिक्स सुबह दे रहे हैं तो रात में सल्फोनाइल यूरिया यूज करें। फिर कोशिश करें शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनाइल यूरिया यूज करें जिसकी हाफ लाइफ 12 घंटे या उससे कम। Again, which insulin ideal to be used in diabetes in pregnancy? Now, diabetes in pregnancy is very important. Basal bolus is the word go, and जो mothers हैं ना, जो pregnant females हैं, they are very receptive to using insulin. They always say yes to using insulin. बड़ी compliant, सबसे ज़्यादा जो compliant population है gestational diabetes में, क्योंकि mothers are very alert कि baby को कुछ ना हो जाए। 4 times daily dose of insulin. You can use short acting or bolus insulins, they are safe. You can use Detamir insulin as a basal insulin. You can again use NPH insulin. Cost का मैं बार बार कहता हूँ, cost का ख्याल रखा करें। Patients cannot afford a lot of things in this country. हर एक को एनालॉग इंसुलिन ना लिखा करें प्लीज, कोशिश करें वो ह्यूमन इंसुलिन पे जोर दें। What is the maximum dose of premixed insulin? There is no maximum dose of insulin. इंसुलिन का कोई मैक्सिमम डोज नहीं है। मेरे पेशेंट्स 300, 400, 500 यूनिट पे भी, इससे ज्यादा यूनिट्स पे भी, आप परेशान हो जाएंगे। तो देयर इज नो फिक्स्ड डोज ऑफ इंसुलिन, कोई मैक्सिमम डोज इंसुलिन का नहीं होता है। अगेन द क्वेश्चन इज चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स में द डोज ऑफ बेसल इंसुलिन। अगेन सी चिल्ड्रन का वेट कम होता है तो ऑटोमेटिकली डोज कम हो जाता है। टाइप 1 डायबिटिक्स आर वेरी डिफरेंट, और आपने देखा होगा कि मैंने टॉपिक ही लिखा था कि इंसुलिन थेरेपी इन टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में मौका मिला तो we'll definitely do a session inshallah. Can glargine be given in the morning? Yes, basal insulins can be used in the morning. Most basal insulins were used at bedtime in studies, तो हम bedtime पे यूज करते हैं। फिर bedtime पे याद भी रहता है कि इंसुलिन लगानी है, तो आप बेसल इंसुलिन मॉर्निंग में भी यूज कर सकते हैं। डेटेमेर के साथ ख्याल रखना है क्योंकि हाफ लाइफ 18 आवर्स होती है, तो आपको लास्ट 6 घंटे इतनी अच्छी कवरेज नहीं मिलती। ग्लार्जीन के साथ यू हैव गॉट अ गुड 22-24 आवर कवरेज। और भी बेसल इंसुलिन हैं जिसमें हमने बात नहीं की, बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू टच द टॉपिक ऑफ न्यूअर इंसुलिन। मैं चाहता था कि कन्वेंशनल इंसुलिन पे ज्यादा बात हो और उसी पे हम महारत रखते चले जाएं, ठीक है। न्यूअर इंसुलिन आर ऑल वेरी वेरी एक्सपेंसिव, सॉरी टू से। Comments I'm just passing and just acknowledging, not going through the comments, right? Yes, does the 70-30 insulin fall in the 0.5 unit? Yes, it's a premixed insulin. 70-30 premixed insulin है तो 0.5 unit per kg। 100 किलो है तो 50 यूनिट पर डे देना है, 2/3 in the morning, 1/3 in the night। तो 50 यूनिट है तो 36 यूनिट आपने सुबह, 35 यूनिट आपने सुबह दे दिए, 15 रात में, 34 सुबह, 16 रात में, ठीक है, 32 सुबह। अगर 60 kg है तो 30 यूनिट है तो आपने 18-20 यूनिट सुबह दे दिए, 10-12 यूनिट रात में दे दिए, ठीक है। Yes, it falls in this category. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम प्रीमिक्स का डोज कैसे सेट करें अगर फास्टिंग कंट्रोल्ड है, पोस्ट प्रेंडियल खराब है। नाउ ये होता है अक्सर कि आपने रात में, अच्छा ये गौर से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वैलिड पॉइंट है कि रात में आपने 70-30 इंसुलिन दी। अच्छा, रात के खाने के बाद रात में आपने 70-30 दी 20 यूनिट्स। एक केस सिनेरियो लेके चलते हैं, रात को 70-30 दिए आपने कितने, 20 यूनिट्स। रात के खाने के बाद की शुगर 250 है, सुबह शुगर 90 है। अब आप परेशान हैं, आप रात के खाने के बाद देख रहे हैं 250 है, तो आपका दिल चाह रहा है कि 70-30 को 20 से बढ़ा दूं, लेकिन आप फास्टिंग देखते हैं तो वो 90 है। अच्छा, इसमें क्या कर सकते हैं, आप रेशियो चेंज कर सकते हैं। 70-30 वाला रेशियो मत दें, 50-50 वाला रेशियो है। अनफॉर्चुनेटली 50-50 वाला रेशियो ह्यूमन इंसुलिन में तो है ही नहीं ना, एनालॉग में। पेशेंट अफोर्ड कर सकते हैं तो दे दें,
50-50 रेशियो से क्या होगा कि 50% बोलस हो जाएगा। अभी आपके पास 70-30 में क्या है, 30% बोलस है, 70% बेसल है। 50-50 देंगे तो बोलस बढ़ जाएगा, तो जो 250 है उसके लिए इंसुलिन बढ़ जाएगी, और वो जो 90 हो रहा था उसके लिए इंसुलिन कम हो जाएगी। तो आपका पोस्ट प्रेंडियल कंट्रोल हो जाएगा और जो फास्टिंग नीचे जा रहा था वो भी सही हो जाएगा। सो यू कैन चेंज द कॉम्बिनेशन। लेकिन 50-50 एनालॉग में अवेलेबल है, चाहे वो यूमोलॉग मिक्स 50 हो या नो मिक्स 50 हो, बोथ आर वेरी एक्सपेंसिव फॉर आवर पीपल, मोस्ट ऑफ आवर पीपल। मैं ज्यादातर लोगों की बात हमेशा करूंगा, जाहिर है। देन अगेन आप फ्री मिक्सिंग कर सकते हैं कि आप एन और आर को अलग से दें। तो आप 70-30 के 20 है तो आप N10 और R10 अलग से दे दें, तो 50-50 प्री मिक्सिंग बन गई। आपका 70-30 के जो 20 यूनिट थे ना, उसमें 14 यूनिट आपके NPH था, 6 यूनिट R था, ठीक है। लेकिन अब जब आप फ्री मिक्सिंग करेंगे तो 10R और 10N देंगे, तो R बढ़ जाएगा, तो जो डिनर के बाद वाला 250 है वो सही हो जाएगा, N कम हो जाएगा तो 90 भी थोड़ा सा बढ़ के 110-120 पे आ जाएगा। आई होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन, राइट? Again, when we give steroids, blood sugars rise. Yes, the blood sugars go up. Insulin doses can always go up with steroids, right? And with steroids, sometimes the question exactly is why mostly insulin with steroids? Why not oral medication? Because steroid ka low dose hai. Somebody is not a diabetic. I mean, you can use oral medications for the time being. Somebody is a diabetic, you're giving high doses of steroids, blood sugars skyrocket to 300, 400, 500. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। सवाल लिखा है कि क्या स्टीरॉइड के साथ दवाइयां भी एडजस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी, जरूरी नहीं है कि आपको इंसुलिन की जरूरत पड़े। अगर आप समझते हैं कि ग्लिमिपेराइड 2 मिलीग्राम है और आप स्टीरॉइड शुरू कर रहे हैं 10-20 मिलीग्राम पर डे, आपने स्टीरॉइड ग्लिमिपेराइड 2 mg से 4 mg या 6 mg कर दिया और कंट्रोल हो जाती है, गुड। जरूरी नहीं है कि स्टीरॉइड दें तो इंसुलिन ही देना है, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, स्टीरॉइड दें तो शुगर जरूर कंट्रोल करनी है, उसके लिए चाहे दवा से कंट्रोल कर लें चाहे इंसुलिन से कंट्रोल कर लें। अगेन एनपीएच की बात की है कि ओडी दें बीडी दें। देखिए एनपीएच इज अ बेसल इंसुलिन, लेकिन हाफ लाइफ 12 घंटे और पीक भी आती है 4 आवर्स स्पेस की। तो एनपीएच अगर डे टाइम कंट्रोल करना चाह रहे हैं दैट्स ओके। इवनिंग ब्लड शुगर्स हाई हैं, डे टाइम में आपको बेसल चाहिए तो आप दें। रात को जाहिर है एनपीएच आपने सुबह दिया है तो वो रात तक तो चली गई, तो रात के बाद अगर आपको फास्टिंग कंट्रोल करना है तो आपको रात को भी एनपीएच देना पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ फास्टिंग के लिए यूज करना चाहते हैं एनपीएच तो आप सिर्फ रात में दें ऐसे बेसल, फिर आप दिन में एनपीएच अलग से देने की शायद जरूरत आपको ना पड़े। Again, the question is somebody is taking insulin, stable HbA1c, can we shift to oral anti-diabetes? Rule of thumb is कि 30 यूनिट से कम किसी का है, 30 से कम, you can give a trial of oral medicines। लेकिन देखें डायबिटीज कितनी पुरानी है। अभी मैं आपको एक हफ्ते पहले का किस्सा सुनाता हूँ। आई गॉट अ पेशेंट, और ये जाहिर है पेशेंट्स आपके पास भी आते हैं। पेशेंट को डायबिटीज को 2 साल हुए थे, मरीज मेरे पास आया, सुबह 16 यूनिट, रात को 10-12 यूनिट, ब्लड शुगर वर कंट्रोल्ड। डायबिटीज को 2 साल हुए थे। 2 साल पहले जब मैंने देखा तो 9 के HbA1c से पेशेंट ने शुरू किया था। पेशेंट वाज अ यंग पेशेंट, 35 ईयर ओल्ड, ओवरवेट या ओबीस पेशेंट। आई थॉट कि क्या जरूरत वाकई थी इंसुलिन की। मैंने मरीज से पूछा, मरीज ने कहा 2 साल पहले डायरेक्ट इंसुलिन शुरू हो गई थी। आई थॉट मे बी टाइप 1 डायबिटीज तो नहीं लग रही थी, जाहिर है टाइप 2 लग रही थी डायबिटीज, तो मैंने ओरल पे शिफ्ट कर दिया। द पेशेंट इज डूइंग गुड, फॉरन शुगर्स कंट्रोल हो गई, है ना। इस तरह बहुत सारी चीजें हैं कि अगर आप समझते हैं कि इंसुलिन सही नहीं शुरू हुई थी तो आप ओरल पे कन्वर्ट करके देखिए। लेकिन अगर आप समझते हैं कि डायबिटीज बहुत पुरानी है और इंसुलिन ले रहा है, कंट्रोल है, तो फिर ओरल पे शिफ्ट ना करें। जाहिर है अगर बीटा सेल्स बिल्कुल खत्म हो गए, 10-12-15 साल की डायबिटीज हो गई है, बीटा सेल्स आर ऑलमोस्ट फिनिश्ड, उसमें आपको जरूरत नहीं है कि दोबारा आप दवाइयों पे ले जाएं। आप दवाइयों पे ले जाएंगे फिर डायबिटीज खराब हो जाएगी, ठीक है। आप समझते हैं कि नई डायबिटीज थी, शुरू में इंसुलिन शुरू किया था तो कंट्रोल, अब हम दवा टेस्ट करें। लेकिन अगर कोई पुरानी डायबिटीज है, हाई डोजेज ऑफ इंसुलिन है, वो कंट्रोल नहीं हो पाएगी आपसे, ठीक है, विद मेडिकेशन, वो इंसुलिन ही देना पड़ेगा। क्वेश्चन इज यूज ऑफ प्रीमिक्स इंसुलिन विद सल्फोनाइलयूरिया। मैंने बता दिया अगर किसी को 2 बार प्रीमिक्स इंसुलिन दे रहे हैं, डोंट यूज सल्फोनाइलयूरिया। अब मैं एक्सपर्ट से बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ, तो मैंने क्लियर बता दिया प्रीमिक्स इंसुलिन 2 बार है तो सल्फोनाइलयूरिया यूज मत करें। प्रीमिक्स इंसुलिन 1 बार है तो आप 1 बार सल्फोनाइलयूरिया यूज करें, लेकिन शॉर्ट एक्टिंग, जैसे आपने ग्लिक्लोजाइड प्लेन यूज कर लिया या एमआर यूज कर लिया लो डोज में, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है।
इंसुलिन स्टोरेज एंड ट्रैवलिंग के लिए देखिए, आप थर्मोस में आइस रख के भी इंसुलिन ले जा सकते हैं। बैग्स भी अवेलेबल हैं बड़े स्टोर्स पे जहाँ इंसुलिन सेफ रहती है। आमतौर पे एयरलाइंस एयर कंडीशनड होते हैं, एयरपोर्ट्स में एयर कंडीशन होता है, यू कैन इजीली सेव इंसुलिन, कैरी कर सकते हैं इजीली। सेकेंडली, घर में भी इंसुलिन जो है इट शुड बी इन रूम टेम्परेचर। मैं तो अपने मरीजों को एडवाइस करता हूँ कि आप एक्स्ट्रा बॉटल्स हमेशा फ्रिज में रखें, इन द वेजिटेबल कंपार्टमेंट, कूल स्टोरेज में। और इंसुलिन के पेन भी आप फ्रिज में रख सकते हैं। आई मीन जरूरी नहीं है कि आप उस पेन को बाहर रखें। हमारे यहाँ पाकिस्तान में घरों के जो रूम टेम्परेचर है ना, बहुत बढ़ जाते हैं। आप नोट करेंगे दे जस्ट गो हाई, ठीक है। तो इवन घर में अगर आपके एसी नहीं चल रहा है गर्म मौसम में, तो बाहर रखने से ज्यादा बेहतर है कि आप फ्रिज में रख दें, फ्रीजर में ना रखें, क्योंकि अगर एक बार बर्फ बन गई तो इंसुलिन जाय हो जाएगी, फिर वो पिघल भी जाएगी तो भी इट्स गॉन। Again, the question is that we mostly use mix, but sometimes in government hospitals we get N and R insulin. Can we shift to 70-30? देखिए, मैं तो अपनी प्रैक्टिस में N और R यूज बहुत कम करता हूँ, बहुत कम है। 70-30 is an easy insulin, और usually patients control हो जाते हैं, ठीक है। Sometimes you have to add medications to it, but most of the time we get control. बहुत rare होता है जब मरीज को फ्री मिक्सिंग N और R देना पड़े। मरीजों के लिए भी बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। जो इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं मरीज, वो तो एक्सपर्ट हो जाते हैं, लेकिन सारे मरीज जो होते हैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हो पाते। 70-30 या प्रीमिक्स इंसुलिन कह लीजिए, इट्स एन इजी इंसुलिन टू गिव। इज देयर अ चांस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया विद ओनली बेसल इंसुलिन? यस इट इज। बेसल के साथ आपको हाइपोग्लाइसीमिया का चांस कम होता है, लेकिन होता है। क्योंकि बेसल इंसुलिन आपको सिर्फ फास्टिंग स्टेट में शुगर चेक करना होता है, तो ईजी हो जाता है। तो अगर आपने बेसल इंसुलिन एनालॉग यूज किए तो हाइपो का चांस कम है, लेकिन आपको डोज एडजस्टमेंट अच्छी रखनी है। स्टार्ट विद लो डोज, ग्रेजुअली गो अप ऑन द डोज। हाइपो का चांस फिर भी है बेसल इंसुलिन के साथ, राइट? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम पीपल आर एडवोकेटिंग आइडिया ऑफ अर्ली इंसुलिनाइजेशन, नॉट वेटिंग फॉर बैड कंट्रोल। मैं भी नहीं कह रहा कि बैड कंट्रोल का वेट करें। देखिए, आजकल बात हो रही है प्रीएम्पशन की। 6.9 के HbA1c पे वेट नहीं करेंगे, 7.4 का होगा तो मैं दवा बढ़ाऊंगा। यू गॉट द पॉइंट। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये ना करें कि नया नया टाइप 2 डायबिटिक है, ओबीस से आपने इंसुलिन स्टार्ट कर दी। व्हाट इज द पॉइंट? इंसुलिन तो और वेट बढ़ाएगी। शुरू में डायबिटीज में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, कट डाउन करने के लिए मेटफॉर्मिन दीजिए। एक्सरसाइज, डाइट, मेटफॉर्मिन। Then you have got medications like SGLT2 inhibitors and GLP-1 analog that reduce weight. तो शुरू में इंसुलिन की शायद जरूरत नहीं होती ज्यादातर मरीजों को। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत खराब डायबिटीज है, 350, 400, 450, 500, जिसमें हम शुरू में इंसुलिन देते हैं और फिर आगे चल के 4-6 महीने में कोशिश उनको भी करते हैं कि दवा पे ले आए। मैं ये कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि अर्ली इंसुलिनाइजेशन का मतलब नहीं है कि पेशेंट कंट्रोल्ड है, आपने दवाइयां बन के इंसुलिन पे शुरू कर दिया। डोंट डू इट। इंसुलिन अगर आप देखें तो किसी भी दुनिया की गाइडलाइंस में फर्स्ट लाइन पे नहीं लिखी है। सिर्फ एस की गाइडलाइंस है जिसमें 9.5 से ज्यादा पे लिखा है कि स्टार्ट विद इंसुलिन। एडीए, ईएएसडी, ईएससी, किसी की गाइडलाइंस में इंसुलिन फर्स्ट लाइन नहीं है। अगर जाके पढ़ेंगे तो सेकंड लाइन में भी नहीं लिखा हुआ। नई एडीए, ईएएसडी की गाइडलाइंस हैं, उसमें भी आप पढ़ें मेटफॉर्मिन, एसजीएलटी2 इनहिबिटर्स, डीपीपी4 सॉरी, मेटफॉर्मिन, एसजीएलटी2 इनहिबिटर्स, जीएलपी1 एनालॉग, ये बड़ी 3 इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। डीपीपी4 इनहिबिटर्स, पाकिस्तान में सल्फोनाइलयूरियास। इंसुलिन यस एज अ सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन एजेंट, कुछ मरीजों में इवन एज अ फर्स्ट लाइन एजेंट। लेकिन ये जो अर्ली इंसुलिनाइजेशन का ये मतलब नहीं है कि राइट एट द स्टार्ट ऑफ डायबिटीज दें। अर्ली इंसुलिनाइजेशन का मतलब मैं बड़ा क्लियर बता दूं, ये है कि अगर मरीज की डायबिटीज खराब है और दवा से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो इंसुलिन शुरू कर दें, फिर वेट ना करें। लेकिन अगर दवाइयां मौजूद हैं तो दवाई यूज करें, उससे कंट्रोल करें। मेटफॉर्मिन दें, एसजीएलटी2 इनहिबिटर दें, डीपीपी4 दें। 3 दवाइयां ऐसी हैं जो वेट नहीं बढ़ाती, हाइपो नहीं करती। ना मेटफॉर्मिन हाइपो करती है, ना डीपीपी4 हाइपो करती है, ना एसजीएलटी2 इनहिबिटर हाइपो करती है। तो हम क्यों ना दें दवाइयां, है ना? दवा देना आसान है ना, मरीज को भी प्रॉब्लम नहीं है, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 दवाइयां तो आप इजीली दे सकते हैं, मेटफॉर्मिन, एसजीएलटी2 इनहिबिटर, डीपीपी4 इनहिबिटर। इनकी कॉस्ट भी नहीं है। एसजीएलटी2 इनहिबिटर और डीपीपी4 इनहिबिटर 1200-1500 रुपए महीने का खर्चा, मेटफॉर्मिन हार्डली एनीथिंग, ठीक है। ऑन अदर पार्ट हम इंसुलिन देंगे, लगाना पड़ेगा, जाहिर है पेशेंट को सिखाना पड़ेगा, कॉस्ट इशू भी अब है। कॉस्ट भी चले इतनी महंगी नहीं है, महीने का उसमें भी 1,500-2,000 रुपए खर्चा आएगा। होल पॉइंट है कि जहां अर्ली इंसुलिनाइजेशन का मतलब ये है कि अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो यूज करें, अगर दवाइयों से कंट्रोल हो रहा है प्लीज यूज मेडिकेशंस देन। Somebody was not getting voice. I think this was in the middle part.
अच्छा, very nice question. If newly diagnosed diabetes, HbA1c 16, do we start insulin? Yes. ये बहुत बार होता है. टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रहे हैं, टाइप 1 की बात नहीं कर रहे हैं. टाइप 2 डायबिटीज 16 का HbA1c का मतलब है 400 से भी ज्यादा शुगर्स हैं, राइट? सो ऑब्वियसली आप 16 के HbA1c पे क्या, शायद 13 के HbA1c पे भी इंसुलिन स्टार्ट करेंगे. पहले 4-6 महीने इंसुलिन देने के बाद मेरी ये एक रिलेटिव की कहानी आपको सुनाऊं. 600 ब्लड शुगर्स, दे कॉल्ड मी, आई स्टार्टेड इंसुलिन. 4-6 महीने के बाद ब्लड शुगर स्टार्ट टू सेटल डाउन, इंसुलिन का डोज कम होना शुरू हो गया, पैंक्रियास को रेस्ट मिल गया. 4-6 महीने बाद वी शिफ्टेड हिम ऑन oral medications. He's doing perfectly well on metformin 500 twice daily and glimepiride 1 milligram once daily. महीनों सालों से अब सही चल रहा है. शुरू में जाहिर है 600 की ब्लड शुगर पे आए थे, हमें इंसुलिन की सपोर्ट की जरूरत पड़ी. तो यस, व्हेन इनिशियली HbA1c इज बैड, स्टार्ट इंसुलिन. फिर आगे जाके कंसिडर उसको भी कर सकते हैं, दवा देनी है कि नहीं देनी है, ठीक है, डिपेंडिंग कि कितने यूनिट इंसुलिन है ना. किसी के दिन के 30 यूनिट से ज्यादा है तो प्रोबेबली वो इंसुलिन पे ही रहे तो बेहतर है. Does metformin increase the exogenous insulin sensitivity? Yes, it increases. It increases sensitivity of all insulins, right? Exogenous or endogenous. There are still there are 104 questions. I don't think so I've answered. So many are still left. I'll try to go and answer as many as I can, right? So again, the question is, what about insulin resistance? We have already talked about it. Effect of now in what to do in kidney and liver failure, right? So remember, in kidney failure, in chronic kidney disease, the insulin secretion is the insulin excretion becomes lesser. So the half life of insulin increase. तो जो CKD पेशेंट्स हैं उसमें इंसुलिन की हाफ लाइफ बढ़ जाती है. तो जो जिसकी 4 आवर हाफ लाइफ है रैपिड एक्टिंग की, तो वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी. शॉर्ट एक्टिंग की हाफ लाइफ 6 to 8 आवर्स है, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी. तो एट टाइम्स बेसल इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती है इन CKD पेशेंट्स. आमतौर पे अगर आप रैपिड एक्टिंग 3 बार दे दें तो रैपिड एक्टिंग की हाफ लाइफ 4 घंटे. लेकिन क्रॉनिक किडनी डिजीज में वही 4 घंटे शायद 6-8 घंटे की तरह बिहेव करेगी. तो आप अगर रैपिड भी 3 टाइम दे देंगे तो बेसल की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो जिस सिर्फ बात आपको याद रखनी है, क्रॉनिक किडनी डिजीज में शायद आपको बेसल की जरूरत ना पड़े या कम पड़े, क्योंकि बोलस ही बेसल की तरह काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि इंसुलिन की एक्सक्रीशन इतनी नहीं होती. इसी तरह प्रीमिक्स अगर कोई 2 बार लेता है तो अक्सर क्रॉनिक किडनी डिजीज के साथ AM हाइपोज होते हैं, मॉर्निंग हाइपोज. और रात को इंसुलिन या तो आपको बहुत कम यूज करनी पड़ती है, या रात को आपको सिर्फ बोलस देना पड़ता है, या रात को कभी कभी इंसुलिन की जरूरत ही नहीं पड़ती. अगेन दिस विल डिपेंड फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट. बिफोर सर्जरी, नाउ लुक, सर्जरी के लिए आप पेशेंट को NPO करते हैं. NPO में क्या होता है, पेशेंट खाता कुछ भी नहीं है, तो जब खाएगा नहीं तो उसको बोलस इंसुलिन की तो जरूरत ही नहीं. लेकिन क्या उसकी बेसल इंसुलिन की भी जरूरत खत्म हो जाएगी? नहीं, बेसल इंसुलिन तो बढ़ती रहेगी. इसका मतलब है अगर आप किसी को NPO कर रहे हैं सर्जरी के लिए तो बोलस इंसुलिन आप मत दीजिए, लेकिन बेसल इंसुलिन आपको फिर भी देनी है. टाइप 1 डायबिटिक है तो आपको 80 to 100% बेसल देनी पड़ेगी. टाइप 2 डायबिटीज में 50 to 80% बेसल इंसुलिन देनी पड़ेगी. अच्छा, होता क्या है, हमारे यहाँ ज्यादातर रात को 12 बजे पेशेंट NPO होते हैं, सुबह सर्जरी होती है. तो रात की 70-30 की डोज देनी है. रात की डोज 70-30 की प्रीमिक्स इंसुलिन की डोज दीजिए. लेकिन रात का जो, क्योंकि रात की 70-30 सुबह 8 बजे तक खत्म हो जाएगी, है ना. और सुबह 8 से पहले तो वैसे भी हम कुछ नहीं लेते हैं ना, जो रात के खाने के बाद अगला खाना सुबह 8 बजे ही खाते हैं. तो अगर किसी की सर्जरी है दिन में, रात के 12 बजे NPO किया है, तो रात की 70-30 इंसुलिन आपको देनी है. लेकिन जो बेसल इंसुलिन है रात की, वो आप कट डाउन कर दें 50 to 80% डिपेंडिंग ऑन ब्लड शुगर कंट्रोल. इसी तरह आप जाहिर है मॉर्निंग में पेशेंट को इंसुलिन 70-30 तो देंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें बोलस है, और बेसल बोलस वाला है तो उसको भी बोलस नहीं देंगे. सिर्फ बेसल इंसुलिन आप यूज करेंगे 50 to 80% इन टाइप 2 डायबिटिक्स, राइट. So again, there are comments as well. I'm not going through the comments. Okay, so somebody's asked if a lady was on metformin, started on
डेटिमेर इंसुलिन एंड एस्पार्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 4 टाइम्स इंसुलिन, मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज के बाद 2 साल से डॉक्टर साहब ने यही बेसल बोलस कंटिन्यू किया हुआ है, लेकिन प्रेगनेंसी दोबारा नहीं हुई है। ही इज आस्किंग इफ इट्स ओके टू कंटिन्यू विद इट। Yes, it is okay to continue with it. A lady who wants to conceive diabetic, I would agree with you कि आप पहले से ही basal bolus पे रखें, so that when the patient enters pregnancy, blood sugar is well controlled. हम चाहते हैं कि pregnancy जब शुरू हो, blood sugars अच्छी control हो। लेकिन ये भी देखें कि वजन नहीं बढ़ रहा हो, वजन भी जरूर चेक रखा करें, because if weight goes up, it's not good for a lady, right? So keep an eye on the weight, yes. Yes, vial 28 days may expire. If you open a vial, usually you should not be using it after 28 days. So again, the same question, what is ideal in surgery, basal bolus or bolus? I would say basal bolus, bolus को आप बंद कर देंगे, basal 50 to 80% देंगे। हम ये करते हैं कि 70-30 भी जिसको चल रही होती है ना, तो रात की 70-30 की डोज लगाते हैं अगर रात के 12 बजे एनपी हो रहा है, और फिर सुबह के टाइम पे हम एक बेसल शॉट दे देते हैं, सिर्फ 24 आवर्स बेसल कवरेज देते हैं। आई मीन समटाइम्स इट्स अ जॉब दैट यू लर्न एज टाइम गोज ऑन। अगेन वही सवाल है, हाउ मच वेट इज इंक्रीज बाय इंसुलिन। कैटाबॉलिक स्टेट में मरीज है ना, जहाँ डायबिटीज अनकंट्रोल हो तो वहाँ वेट गिरता है। जैसे आप इंसुलिन देते हैं, कैटाबॉलिक स्टेट खत्म हो जाती है, वेट चंद किलो बढ़ जाता है। लेकिन ये नहीं है कि बढ़ता ही चला जाएगा। अगर डाइट कंट्रोल्ड है, एक्सरसाइज है, वेट नहीं बढ़ना चाहिए फिर, ठीक है। I'll take one last question. There are still many questions unanswered. I apologize for this also, but it's already 1 hour and 33 minutes. Again, the difference between Humalog Mix 25 and Mix 50 dosing में, देखिए Humalog Mix 25 और Mix 50 में फर्क बेसल बोलस के रेशियो का है ना। Humalog Mix 50 में बोलस भी 50 है, बेसल भी 50 है। Humalog Mix 25 में बोलस 25 है, बेसल 75 है। तो जहां पेशेंट का खाना पीना ऐसा हो कि प्रेंडियल शुगर ज्यादा है, तो वहां मिक्स 50 यूज करें। जहां प्रेंडियल इतनी ज्यादा नहीं है, बेसल फास्टिंग ज्यादा है, तो वहां आप 75-25 यूज करें। आमतौर पे मिक्स 25 यूज होती है, लेकिन कुछ मरीज जो होते हैं उनकी पोस्ट प्रेंडियल शुगर्स बढ़ती हैं, तो उसमें मिक्स 50 यूज करें। ज्यादातर मिक्स 25 यूज करनी चाहिए दिन में 2 बार। Can we give, this is the last question and then we'll put the session off, can we give glargine 2 times a day if dose is high? Yes, absolutely. There is a limit in the pen also. अगर high dose है तो आप दिन में 2 बार split कर सकते हैं, और दिन में 3 बार भी split कर सकते हैं, इसमें क्या बुराई है, ठीक है। आपको तो पता है कि 24 घंटे में 1 बार देते हैं, लेकिन अगर high dose है तो आप split करके दे दें, कोई issue नहीं है। Thank you very much once again. I apologize that many questions are still left. Thank you very much. The webinar is saved. I hope you enjoy it. I love it. I love doing it. Hopefully see you next time, inshallah, with another webinar. Thank you very much once again. Allah Hafiz.